I can take you till the end of the show. Guarantee. एक शर्त पे. What's the शर्त? You are not allowed to have opinions. You're not allowed to fight anyone. You're not allowed to disrespect me. You're not allowed to talk when I'm talking. तुम खाली मेरी यहाँ पे puppet बन के चलो. Akansha was essentially योगेश का rebound. कि झलक और मेरा भी एक कनेक्शन था, तो अब उसको मैं कुछ धीरे धीरे करके I have to sideline her. ये उसने Ganesh said what? Oh yes. उसने पे किया मीडिया को ताकि वो लोग ऐसा रूमर बनाए कि she is dating, I mean she is with or something with दिग्विजय, क्योंकि फोटो था. मुझे eyelashes से याद है क्योंकि वो योगेश को पसंद था. आकांक्षा, मैंने अपने बाल कर्ल किए हैं. Do you like me? Oh God, straight में दिखाया. वो क्या है ना, My Akkutara. Do you like Kashutaru today? oh my God, no way. I chose the wrong hair only. अब मुझे सीधे बाल पसंद है, मुझे लड़का ही नहीं पसंद. गौरेश नहीं पसंद आपको? We are good friends, that's Just it. friends. डेवलपमेंट हुआ शो के बाद, बिकॉज आई टेल यू रियल लाइफ में ना मैं इतना फाइट वाइट नहीं करती हूँ किसी से. चल झूठी. ऑनलाइन करती हूँ बस. Exactly. कोई तुम्हें डेयर मिल रहा है तो इट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी कि तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें कुछ चंद चिल्लर स्प्लिट कॉइंस चाहिए. मुझे वो डेयर मिला होता कि मुझे किसी के कपड़े फेंकने हैं, मैं नहीं करती. बट इमेजिन अगर मैंने उसके बारे में इतना रिसर्च किया होता कि उसको बड़ी आंखें आईलैशेस वाली लड़कियां पसंद है, तो मैं क्या रूरू के बारे में रिसर्च नहीं कर चुकी होती अब तक. और अगले दिन जो मेरे को गुस्सा चढ़ा तो मैं तो मुड़ के पीछे ही खड़ा था. मैंने मुड़ के बोल दिया, सुन तेरे 2 दांत टूटे ना, बचे हुए 2 तोड़ दूंगी और तेरे हाथ में रख दूंगी गिरगिट जैसी शक्ल की. कि सुजान सन आई हैव अ प्लान. हमने क्या, आई वांट टू मेक अ कनेक्शन विद यू बिकॉज आई थिंक तेरा जो एक्स है वो पोटेंशियली शो में आ सकता Oh है. my goodness. एंड उसको उससे क्लाउड खाना था. Oh my goodness. ये चीज यही था मेरा शो. दिस वॉज एवरीथिंग. तो मैं बात किसके बारे में करूं अगर मैं यही हुआ है मेरे साथ. इसके अलावा मैं क्या बात करूं. He loves me not. He loves me not. He loves me not. Guys, प्यार में ना लड़के फूल नहीं धोखे बरसाते हैं. पर आज ये फूल उन सब लोगों का पर्दा फाश कर. गाइस, मेरी चाय रेडी है. परफेक्ट. Should I spill this one or should I spill that one? ये वाली चाय नहीं. Today I'm gonna spill some real tea. Oh my God! We have an episode together! Finally! Guys, how do we feel? Kaleshi! Fantastic. And are we ready for BYOG? Yay! There's only goss, and more goss. You're not ready for this one. Yes, Splitsvilla is a dating show. Yes, it's a reality show. And yes, we live for the drama. But पता है क्या guys? Speaking from experience, जब तुम विला के अंदर होते हो ना, तो every now and then everything feels a little too real. Especially when you live in a world full of fake connections, strategies and groupism. Sometimes those feelings, they hit like reality on steroids. Welcome to MTV BYOG Season 2 Splitsvilla edition with me, Kashish Kapoor. Where we give you the tea in reality. और आज हमारे साथ है 2 ऐसे guests जिनके बारे में काफी गॉसिप हो रही है. I mean, they've made quite an impact. अब चाहे वो impact खुद के कारण बना हो या because of being the second option of some Splitsvillans. I never know. Anyways, one of them is the one who caused the major Tea-Gate incident. We all know about that. And the other one, she had one of the most shipped. She was, in fact, one of the most shipped couples this season, but had the ultimate plot twist. Anyways, let's get to know more about it. So, welcome to BYOG, Akansha and Suzanne. Hello. And before I get into the details, welcome you properly, I would like to actually begin with a question for each of you. Okay. Akansha, you've had नहीं तारीफ है. You've had an amazing arc, right? Like starting से ही you've received a lot of love. Like people are calling you crushes and like fool वाली लड़की. Like you've been associated with the sweet girl next door image and you've gotten a lot of love. Yeah. So how are you enjoying your journey? Because it's been the same from the starting. You've just received love. How is it for you? I think I read it somewhere कि just because मुझे विला में इतना प्यार नहीं मिला लोगों से, contestants से,
So God is making up for it outside. Yeah. बाहर सारे audience में, and I think that makes me feel very blessed. Did you expect? नो नॉट एट ऑल. आई थिंक सौरभ और मैं यही बात करते हैं कि भाई हम दोनों तो ऐसा लग रहा था हमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हम आ तो गए शो में. यहाँ से क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि शुरू में आई थिंक फर्स्ट 3 डोम्स में ना आई यूज टू नॉट स्पीक मच, क्योंकि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो मुझे पता नहीं था कि किस बात के मुद्दे बनते हैं. एंड जब आपने एक बार ही बोला तो आप पे लोग चढ़ गए. एक बार बोला फिर चुप तक नहीं चढ़े. हुए. हाँ, फिर उसकी भरपाई मैं आज तक कर रही हूँ. तो फिर तब मैं ऐसे हो गई थी, बट आई थिंक तब मुझे मजे आए थे बहुत ज्यादा कि दिस इज द रियलिटी शो दैट एवरीवनस टॉकिंग अबाउट. ये होता है रियलिटी शो. या वो हमको दिखा था एक्चुअली. आई थिंक योर रियलिटी वाज काइंड ऑफ आल्सो स्लिपिंग इन दैट मोमेंट जहां आई थिंक यू आर गेटिंग टू नो व्हाट आई एम कमिंग एट. राइट, व्हाट एम आई कमिंग एट? वो स्माइल यू आर सेइंग. You know what? I support it wholeheartedly. I like know, why I saw not? your video. Yeah, like why not? बट जेन्युइनली द थिंग वाज कि अभी आगे भी एपिसोड्स में यही देखा है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना मैं सिर्फ स्माइल करती हूँ. Nervous laughter. हाँ, Nervous laughter? नर्वस लाफ्टर, डिसअपॉइंटमेंट वाली स्माइल थी बेसिकली वो मेरी, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब मेरी बात को इतना गलत समझ लेंगे. तब जेन्युइनली ऐसा हुआ था कि अंजलि ने मुझे आने से पहले, डोम में आने से पहले 5 मिनट पहले ही बोला था कि ऐसा हिमांशु ने मुझे बोला है, हो सकता है तो तू मेरा स्टैंड लेना. तो मैंने कहा यार अब बोला है तो लूंगी. तो तब मेरी वो दोस्त नहीं थी, शी वॉज जस्ट माई रूममेट, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये गलत चीज़ है कि लड़के के हाथ में क्यों पावर है. मुझे वो वाली चीज़ आ गई थी. No, fair. Agree. Yeah, that's fair. तो that's why वो स्माइल जेन्युइनली मेरे अंदर से निकली थी, पर वो वैसी वाली स्माइल नहीं थी. सो Okay. And Suzanne, Yes. you from being, you know, one of the most hated contestants, thanks to the Tea-Gate, to actually having ठंडी है. the मुझे दूरी रखो प्लीज, मुझे रिफ्लेक्स हो जाता है. इसके घर पे आज भी हम जाते हैं ना, आंटी चाय पूछती है, मैं दरवाजे से बाहर Hey, auntie, thank you. No chai near your daughter. हम पानी पीते हैं सिर्फ आंटी. So, coming to my question, Yeah. Suzanne, starting, you know, from being one of the most hated contestants to the audience actually warming up to you. Did you expect this, and how has this change been for you? Honestly, I feel like this is my biggest flex. मजाक नहीं कर रही हूँ. Like कभी कभार कैसा होता है ना, शो में मुझे काफ़ी लोग अंडरस्टिमेट कर रहे थे. Yeah. कि you know like she's मतलब सुजान क्या ही कर लेगी, she can't perform and everything, all of that. And in that moment I was feeling really like pathetic, honestly. कि you know why are they doing this? And the thing is कि मुझे ऐसा था कि I don't need to prove myself to them, but I need to prove myself to like everyone watching the show, because this is not who I am. I was really quiet and I wasn't feeling like myself at all. फिर धीरे धीरे मेरा कनेक्शन बना, एंड देन मुझे वो कॉन्फिडेंस आया दैट ओके वेट आई हैव अ पार्टनर राइट नाउ, बिकॉज पहले आई डिड नॉट हैव अ पार्टनर, राइट? या आई डिड नॉट हैव अ पार्टनर, सो आई वाज लाइक यू नो देयर आर हाई चांसेस कि मैं शो से निकल जाऊँ. या एंड देन वो द होल टी इंसिडेंट हैपन, मुझे काफ़ी हेट मिला. बट अभी जब मैं बाहर हूँ शो की, जब मुझे हेट मिल रहा है, आई वाज लाइक कि ठीक है यू नो ये 2-3 दिन का हेट है, people will see why I did what I did, and that's what's happening. या लाइक आई थिंक इवन अभी भी इंटरनेट पे आपको ये चीज़ दिख ही रहा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं अगर इसी सीजन के कंटेस्टेंट्स हैं, तो आज मैंने आपके लिए कोई हेकड़ी में स्टोरी डाल दी, कल पूरी जनता मेरी ही मार रही है. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आई डोंट नीड टू नेम नेम्स, बट पीपल आर वाचिंग इट हैपन, राइट? Karma is hitting hard this year. Oh, they are. Spoiler नहीं दे रही, बट शो में भी एंड शो के बाहर भी कार्मा मेरा काफ़ी साथ तो आई मीन दे रही है. I am so she's not a after all, at least to me. Okay, that's nice. Bitch से याद आया, you know what guys? लग रहा है. No, just you know, good प्यारी प्यारी बातें. So Splitsvilla के साथ साथ हम BYOG के भी लास्ट लेग में है. Basically, you know, we are about to conclude the show. Splitsvilla भी BYOG भी. I think it's high time I drop the nice girl act. It's time मैं आपको अपने असली रंग दिखाऊं. तो guys, you all know what Kashish Kapoor is like, and now I'm gonna own it even more on BYOG. So now, guys, I have decided to, you know what this is? These guys are not doing their homework. हाँ, ये शो आ रहे हैं पर ये शो देख नहीं रहे हैं. इनके कॉन्ट्रैक्ट में डालो गाइस, अगले साल से बुलाएंगे नहीं if they don't watch the show. Like hello. Controversies से हमें टाइम नहीं मिल रहा है शो का. This is the creator of all controversies. This is the hot mic for hot people, of course. Okay. तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना hot mic यूज करने वाली हूँ for a new segment. And this segment is called Trigger Warning. Because this will definitely be triggering. And oh, let me also introduce you to my other friend, Backstory Bell. Each time I feel कि आप मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो,
या आप नॉट कॉलिंग अ स्पेड, मैं ये बजा दूंगी कि हेलो थमो, आपके डैडी जी बैठे हैं, घुमाइए नहीं. एंड ऑल्सो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे हो एंड आई वांट टू नो मोर, आई वांट टू डिग डीप, तो आई विल हिट द बेल. रेडी गाइस? Yeah. So one by one, both of you will do it. Chalo, Suzanne, let's start with you. पहली बंदूक मेरे सर पर है. Yeah. Hello. Yeah. Let's start with Akansha, you. Akansha was essentially Yogesh ka rebound. Ouch. I mean, See, Oh my god. so the way things are being seen on the show, being portrayed on the show, जैसे edits बन रहे हैं, obviously अगर मैं as an audience देखूँ मुझे तो यही लग रहा है, because that I was a Yeah. rebound. Yeah. But when I was in the show, जब रूरू की एंट्री नहीं हुई थी, I think whatever we had, मतलब जितने भी टाइम तक था, I think it was real from both ends, because शो पे सिर्फ आई थिंक 10 मिनट 5 मिनट का हमारा पूरा दिन का जर्नी दिखाते हैं, बट जेन्युइनली हम पूरे दिन साथ रहते थे. आई थिंक तुम इतने देर तक किसी इंसान के साथ हो तो तुम्हें पता चल जाता है, कोई इतना फेक नहीं कर सकता. तो आई न्यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, पर मुझे अभी भी वो चीज़ but darling, that's what a rebound is, right? You are not rude or mean to your rebound. Your rebound is your next girlfriend because you want to get over your previous girlfriend. So of course he's going to treat you like a girlfriend. That is the whole point of a rebound. आई मीन आई कुड, अब ऑब्वियसली मुझे कुछ पता ही नहीं था कि उसकी एक्स, आई तो न्यू कि उसकी जो लास्ट एक्स है वो 1.5 साल पुरानी थी. उसके बाद उसने मुझे कुछ बताया नहीं था. तब मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि आई वॉज अ रीबाउंड. आई थॉट कि उसको भी फ्रेश स्टार्ट चाहिए, एंड मैं तो पूरी ही फ्रेश हूँ तो मैं तो कभी डेट ही नहीं किया था. सो तब मुझे नहीं लगता था, बट ऑब्वियसली बाहर आने के बाद बिकॉज आई कैन सी द शिफ्ट इन पर्सनैलिटी व्हेन द एंट्री हैपेंड, एंड जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस भी थी दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. एंड फन फैक्ट, जब जैसी रूरू की एंट्री हुई थी, योगेश ने आई थिंक उसको बोला था आई मिस्ड यू Yeah, a lot. दैट आई कुडंट हियर दैट टाइम. The same thing that he told you, by the way. या बट जब वो बोला तब, क्योंकि वो दूर था तो मेरे को सुनाई नहीं दिया. बट मैंने अभी देखा एपिसोड में और मुझे इतना वो स्टूपिड फील हो रहा था कि अगर मेरे को तब सुन लिया होता ना, मैं शायद इतना होप ही नहीं करती. क्या बोल रहा है रूरू तारो? I missed you. I missed you too. A lot. A lot. I wasn't मतलब expecting much, but I think I was confident enough in our connection, क्योंकि we had the best compatibility and the connection in the whole villa. तो I did And I expect. feel like कि वही उसके आने से पहले उसी डोम में he was like कि you know guys, I really want to go to the oracle with her. ये हमारा कर्स, आज कर्स तोड़ दो. Yeah. कर्स टूट गया. कर्स क्या, रिलेशन कनेक्शन ही तोड़ दिया उसने भाई उस दिन. Curse खुद ही बन गया. I mean, what yeah. can we say? But I think Continue. everything happens for a reason, Yeah. and the reason was good. Okay. Was apt. Next. Oh yeah. Suzanne threw tea on Sandy क्योंकि Suzanne को और कहीं से attention नहीं मिल रहा था. हम लोग जब झगड़ा कर रहे हैं, पता है कौन डिजर्विंग है अभी. क्या क्यों कर रही है ये सब? कि मेरी मर्जी, मेरा मुंह है. Exactly, तू मुझे बोले कब बोलना है, तुम्हारे तू बारे मुझे में बोले कि कब बात करना अभी है. प्रॉब्लम किसको है? तूने बोला ढंग से बात कर रही मैं हो. नाइव होंगी तो मुझे शो से निकाल देंगे, ये तेरी चीज ढंग से है. बात कर. तूने बोला मैं नाइव होंगी तो ये क्या कर दिया ये? No, that's not true. But many people have said that about you. So वो टाइम पर मेरा कैसा था ना कि आई डि नॉट नो कि इफ़ आई थ्रो टी तो मुझे ऐसा हो जाएगा कि टीआरपी मिलेगी या फिर यू नो आई विल बी एबल टू स्टे इन द शो फॉर लॉन्गर व्हाटएवर, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट रियलिटी शो. आई डि नॉट नो कि ऐसे हंगामा करने से आपको शूट में पता नहीं, लाइक आई डोंट नो, काफ़ी लोगों का कहना था वो कि यू वर सर्वाइविंग इन द शो बिकॉज यू डिड दैट. I mean, आपके सीजन के ही बाकी कंटेस्टेंट्स का मोटो यही था ना कि ड्रामा करो रोज और सरवाइव करो. I mean, yeah, that is true because off camera they were like behaving like normal human beings. Yeah. And camera on होते ही ऐसा लगता था सबके इनको. कपड़े फिक्रे इधर से उधर. कैमरा ऑन होते ही लग रहा था कि इन्होंने आज दवाई नहीं ली है. किसी की तो लेके भी भाग गए अपेरेंटली. किसी का तो कहना है कि हम मतलब हमारा नाम नहीं लिया बट हमें इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि Yeah. हमने किसी का दवाई फेंक दिया है. पहली बात तो मुझे पता नहीं था दवाई लेती है. मैं सोचती थी कि दवाई क्यों नहीं लेती है, कौन, because the way कौन? she was acting. दीक्षा.
दीक्षा या बेसिकली वो उसने बोला है अपनी लाइव में बोला है आई थिंक कि वो दवाई लेती थी और मंदिर नहीं भगवान जी का उसका कुछ सामान था तो ये कुछ चीज़ें अलाउड ही नहीं होती तो शी इज़ लाइंग अगेन शी लाइड अबाउट द वो मारपीट वाला सिचुएशन जो भी हुआ है हमारा तो बेसिकली बहुत लंबी बात है एपिसोड में भी दिखा होगा कि she came into my room with Ruru. She took all of my stuff, all of my clothes, threw it outside. उसको डेयर मिला था कि आपको आकांक्षा के सारे कपड़े बाहर फेंकने हैं और आपको स्प्लिट कॉइन्स मिलेंगे उसके पहली बात तो अगर कोई तुम्हें डेयर मिल रहा है तो इट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी कि तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें कुछ चंद चिल्लर स्प्लिट कॉइन्स चाहिए मुझे वो डेयर मिला होता कि मुझे किसी के कपड़े फेंकने हैं मैं नहीं करती स्ट्रेट अप मैं मना करती मुझे नहीं चाहिए चिल्लर बट शी डिड इट एंड जैसे ही मैं बाहर आई अपने रूम में तो वो और रूरू एकदम ऐसे स्टाइल में खड़े थे दोनों एकदम हंस रहे थे एंड देन मुझे तब नहीं पता था कि उनको डेयर मिला है मुझे लग रहा था कि वो फुटेज के लिए कर रहे हैं बेसिकली वो फुटेज के लिए कर रहे थे बट तो मुझे उनको क्लाउड नहीं देना था मुझे कुछ फुटेज नहीं देनी थी तो मैंने अपने कपड़े चुपचाप उठा के मैंने कहा वेरी क्लासी गाइस और मैं सिर्फ अपने कपड़े उठा के अपने रूम में जा रही थी तो जैसे ही मैं रूम में एंटर करी उसके बाद बोला तूने मुझे बोला था ना कि मेरे Yeah, this is what she said. You said that? No, never. She never said that. मतलब ये चीज़ तो मैं अपने दुश्मन को भी ना Why कहूँ would you say that? Very classy. Yes, very classy. Very classy. तुझे मैं रूममेट नहीं चाहिए थी ना अब निकलो रूम से और जाओ जाके रहो किसके पास रहना है अब मैं एक बार क्लियर करती हूँ रूरू अगर आप क्लियर नहीं करना है मैंने ये चीज सुनी है आपने ये चीज बोली है मैंने ये बोला था यू नो इट्स नॉट अ एलिगेशन बहुत गलत बात है जब मैंने वो चीज नहीं बोली तूने ये चीज सुजैन को बुलाओ अभी क्या कहा था तूने सुजैन कहीं की जज है इवन व्हेन द वर्स्ट थिंग हैपन टू मी ये रूरू योगेश वाली सिचुएशन जब ऐसी कुछ चीज़ें होती है मैं चुप हो जाती हूँ या फिर मैं बोलती हूँ तो मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ मतलब आई नो माई बाउंड्रीज आई नो माई लिमिट्स तो जब उसने ये चीज़ कही तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि एटलीस्ट झूठ मत बोल वी वर फ्रेंड्स कभी ना कभी तो दोस्त थे ना वो चीज़ तो दिमाग में रख के ये सब नहीं करती और एकदम जैसे ही रूरू आई तो उसने मुझे रूरू से रिप्लेस कर दिया वो दोनों साथ में घूमते थे फिर तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरी सुजैन और दीक्षा की प्राइवेट कॉन्वर्जेशन थी जिसमें दीक्षा और मैं मेकअप कर रहे थे एंड दीक्षा ने नीचे ड्रॉर खोला और वो बोलती है कि हट जाए तो लग जाएगा नहीं हट जा नहीं तो लग जाएगी एंड इन दिस टोन हट जा नहीं तो लग जाएगी तो जब उसने ऐसे बोला इससे पहले भी पिछले दिन भी हमने जब मेकअप किया था उसने कहा था साइड हो जा मेरे को ड्रॉर खोलना है तब उसने रिस्पेक्टफुली बोला था तब मैं साइड हुई उसने ड्रॉर खोला सारा काम किया अगले दिन जब उसने बोला क्योंकि हमारी लड़ाई थोड़ी एस्केलेट हो गई थी तो उसने उस टोन में बोला तो मेरी भी ईगो ट्रिगर हो गई तो मैंने कहा भाई लग जाएगी क्या होता है ब्रो ढंग से भी तो बोल सकती है तो फिर उसने कुछ बोला एंड फिर पीछे से ये बोली नहीं हाँ नो मैंने कुछ तो हम बात कर रहे थे देन आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर हम लाइक कि कोई बात नहीं आगे मत कर हट जा साइड में ऐसे मैंने बोला एंड शी गोज लाइक कि ओए तो क्या मौसी बोली what the I mean so basically bro, you are body shaming shaming me yeah and then I was like कि तू तो है फिर अगर ऐसा ही है तो कुछ दो चोटी बांधी थी वो टाइम पे हमने क्या अगर तू मुझे ऐसे बोल रहा है I'll call you that and मैंने वैसे बॉडी शेमिंग वाले में नहीं बोला था मुझे लगा कि ये मजाक हो रहा है वगैरह then I realized कि this girl is not kidding okay and she's actually doing all of that and then उसके बाद हमारा वही नॉर्मल बात हो रहा था लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई तो बेसिकली उसने बॉडी शेम किया इसको एंड आई वाज लाइक क्योंकि हमें ना अब क्योंकि हिमांशु थोड़ा राजा प्रजा वाला चीज करता था तो मैंने उसे बोला था कि ढोलकपुर का राजा क्यों हाँ तो अगर अपने आप को राजा समझता है तो तू राजा होगा ढोलकपुर का स्प्लिट्सविला का नहीं हो गई तो हम उसको बना दिया था मैंने बट उसके सामने नहीं चढ़ाते थे मतलब ऐसे डोम वोम में चढ़ाते थे शायद डोम में मैं उसे बोलती थी कि that's what तो बहुत ही ऐसे बच्चों वाली कार्टून वाली फाइट वो सब बहुत फन वे में करने की कोशिश कर रहे थे तो भाई तो उसने मौसी जब इसको बोला तब मैंने कहा भाई देखो मौसी बोला इसने तो फिर ये कहती अच्छा मौसी तो की माँ होती है ना चलो चलेगा बस ये as in like आई एम लाइक या वैसे वे मजाक में बोला था एक बार है ना हम दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो बेसिकली रूरू और योगेश वाला मैटर कल ही हुआ है अगले दिन आई एम क्राइंग अबाउट इट मुझे थोड़ा इमोशनल हो गई तो मैं रो रही हूँ रूम के बाहर हमारे तो मैं और सुजैन बैठे हैं हमारा पूरा चल रहा है कैमराज हैं तो हम डिस्कशन कर रहे थे उस बात पे मुझे रोना निकल गया नई बात नहीं है मेरे को रोना बहुत जल्दी निकल गया बट आई स्टार्टेड क्राइंग
हमें पता नहीं था दीक्षा अंदर है। दीक्षा बाहर आई, गेट खोला, पहले तो मुझ पे चिल्लाई कि ये सिंपैथी लेना बंद कर, और बहुत गंदी एकदम गलीज लैंग्वेज में उसने बोला कि तेरे को तो मैं दिखा दूंगी औकात क्या है, दिस एंड दैट। और इसके यहाँ इतनी पास आके बोलती तेरे थप्पड़ मार दूंगी तुझे मैं। एंड हमने कि मैंने किया क्या? कि चुप हो, थप्पड़ खाएगी, थप्पड़ खाएगी, चुप। चुप। उसके अंदर ना आत्मा घुस गई सदफ वाली। चुप। या एक सेकंड गाइस, सो सॉरी, Yeah. हम बहुत आगे डेविएट हो गए हैं। कमिंग बैक टू, आई बिफोर वी गेट ऑन द क्वेश्चन, आई स्टिल वांट टू नो कि यहाँ तो बातें चल रही है, हाँ। हाउ डिड इट गेट फिजिकल? तो बेसिकली उसने जब ये चीज़ बोली, मैं उस पर चार्ज करने लगी कि बिकॉज मेरी तो सटक गई थी, मैं जनरली ठीक है। सटक गई थी, ये क्या बोल दिया अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। और साइड में रूरू मुझे बोल रही है उल्टा, तू कैसे बोल सकती है ये? मैंने कहा ब्रो यू आर नॉट इवन इन द रूम, तू कहाँ से आ गई अचानक से? तू शो में भी नहीं the थी। same way she was not in योगेश's life, लेकिन आ गई। माइक दे दो, ड्रॉप करना है तेरा। कर दे। बेसिकली वो आके बोलने लग गई कि तू ऐसा कैसे बोल सकती है। तो मैंने उसको बोला रूरू प्लीज, यू आर नॉट इन द रूम, तू इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट मत बन। ये चीज़ मैंने कभी नहीं बोली और मैं बोल भी नहीं सकती, एंड यू वुडंट नो क्योंकि यू आर नॉट देयर। तो जब मैंने फिर दीक्षा को बोला कि दीक्षा झूठ मत बोल, कैमरा के लिए झूठ मत बोल, तो मैं उसके ऊपर ऐसे पॉइंट चार्ज करने लग गई। आई वॉज वेरी क्लोज टू हर, तो उसको ये सहा नहीं, एंड वो मुझे चुप कराने, चुप रहे, तूने बोला है करने लग गई। एंड मैं जब चार्ज करी थी उसने मुझे पुश किया, तो मैंने भी उसको पुश किया। What am I hearing? Are you serious? एंड ऑल बिकॉज ऑफ सम चिल्लर स्प्लिट कॉइंस। इसको तो मारा फॉर नो रीजन। मुझे भी उसने आई केम टू लाइक ये बचाने आई मुझे। मैं इसे बचाने आई। बाकी के विला के लोग कहाँ थे? Did nobody They were all भाग रहे थे? watching. नेबर होता है ना मोहल्ले की आंटियां टाइप, और सब देख रहे हैं और अस्मिता से देख रहे हैं। मुझे अस्मिता बोल रही है लेट्स गो सुजान, एंड द थिंग इज दैट आई वाज सो इन द मोमेंट एंड आई एम लाइक कि मैं कुछ नहीं होने सकता काजल को। What am I hearing? Nothing. Yeah. And I tried to pull her behind and she started pulling my hair. She started pulling my hair. Goodness, are you kidding me? And I'll tell you pulling? something, सनी मैम के सामने जब ये बात आई तो सनी मैम दीक्षा को लिटरली बोल रही है, ब्रो दीक्षा आई वॉच्ड द क्लिप, यू हिट हर फर्स्ट। कहती नो मैम आई डिड नॉट मैम, आई डिड नॉट। फिर वो सिंपैथी कार्ड खेलने लग गई। अब उस पर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती ना, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। And you know what Himanshu said? This is the reaction to your action, Akansha. And this is the same thing he told me जब सौंदर्य And का he's scene trying हुआ to था. justify it. चलो Yeah. ठीक है, your action was terrible. Whatever your action may be, it was the worst action. Yeah. Are you justifying that reaction? इमेजिन Exactly. I cannot imagine. I genuinely cannot imagine. Like my मतलब- mind is stopped. एट दैट टाइम जब ये लड़ाई हो रही थी तो हिमांशु आया, योगेश वगैरह सब आए, ठीक है। जब Well, लड़ाई Himanshu must have a lot to say to Diksha because he's just so against all these dirty things. आई मीन आई थिंक दीक्षा और मेरे बीच में जो डिस्टेंसेस हुए हैं वो बेसिकली हिमांशु की वजह से ही बढ़े थे, क्योंकि हिमांशु वाज ट्राइंग टू सेपरेट मी फ्रॉम सुजैन Yeah. इन अ डोम। तो उसने मुझे बोला कि सुजैन गुल्लू को सपोर्ट कर रही थी, तुझे नहीं कर रही हाँ, थी, that दिस एंड was- दैट। तो मैंने कहा ब्रो सी, जब तुम लोग विला में नहीं थे तो सुजैन, जब तुम लोग विला में थे, जब ये मर्जर से स्वैपिंग से पहले की बात है, तब सुजैन यूज्ड टू फील वेरी अलोन। वो हमारे ग्रुप का पार्ट उसको फील ही नहीं होता था, बिकॉज हिमांशु वगैरह ने बहुत क्लियर कर दिया था इसको तो मैं निकालूंगा ये वो करके। Yeah. तो पर्सनली भी उसको ऐसे ही रखते थे। तो ये बीच बीच में मैं देखती थी कि ये दूर जा रही है, फिर हम इसको बुलाते थे, ये बहुत सैड घूमती थी। तो जब स्वैपिंग हुई, जब गुल्लू गौरेश विशु वगैरह सब आए, यू कैन लिटरली सी कि इसका गेम कैसे एम्प अप हुआ है, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिविटी Yeah, she felt at home. शी फेल्ट नाइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द विला। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई अगर वो सपोर्ट कर भी रही थी गुल्लू को, इट्स फाइन, बिकॉज पहली बार उसको किसी ने घर जैसा फील कराया या फिर कुछ खुशी फील कराई है, तो दैट वाज गुल्लू एंड गौरेश एंड विशु। And I was supporting both of them, by the way, And उसमें Yogesh, दोनों- Akansha as well, and Gullu, Kaira as well. I was like कि कोई भी जीता I'm happy because Yeah. दोनों ही मेरे दोस्त हैं। हाँ. बट देन वो उन्होंने उल्टा नैरेटिव चेंज किया था। सॉरी दीक्षा एंड हिमांशु स्टार्टेड येलिंग कि हम तेरा स्टैंड ले रहे हैं, तू उल्टा इसकी तारीफ कर रही है। तो तब मेरी और दीक्षा की थोड़ी होने लग गई थी। Akansha, या the mic please. उसके हाथ में बाइक था, तब भी मेरा वही तो- बोल रही थी। मैंने तो आंसर ही नहीं किया। Did you, okay, just sum it up. Did you throw tea on Sandy because you were wanting attention? Because many people have said that about you. मेरा ऐसा था कि अगर मैं निकलूंगी मुझे इसको सबक सिखा कर ही पर आप निकलना है। प्लान करके गए थे उसके पास, आपने प्रॉपरली ये बातें करी थी अंजलि के साथ कि ठंडा फेंकूंगी गरम दिस हाँ, हैज हाँ. कंप्लीटली बीन डिकोडेड। Yeah. सो इट वाज प्लान। It was planned, but जब मैं गई ना चाय लेकर तब no, but it wasn't because कि मैं दिख नहीं रही हूँ whatever. It was just because I was frustrated with her. Okay, but when I went ना उसके पास मेरा ऐसा था कि I want to sort things out with her and कैसा होता है ना तुम सोच सकते हो, but जब करने की बारी आती है ना you are like कि maybe नहीं But करना no, है. I think many people have said it that you
planned to do it because you wanted to, you know, like do a bang. You were perhaps scared कि मैं तो निकल जाऊंगी, मैं दिख नहीं रही हूँ, तो अभी ये करके दिखूंगी. No, ऐसा नहीं था. मेरा ऐसा था कि अगर मैं निकल भी जाऊँ तो I want to make sure कि ये बंदी को सब लोग से कुछ bro I cannot get bullied and get out of the show. तो एक बात बताओ मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं. एक बात बताओ सुजैन, किसी के मुंह पे चाय फेंकने से आपने क्या साबित कर दिया? I don't know, like I was frustrated, alright. वो moment I went to her to sort things out. Okay, मैंने उसको अच्छे से बोला था, and the thing is that she did not want to sort it out. Yeah, I mean, I was just really, But see, it was really what impulsive, actually happened, ये planning वाली जो चीज़ है ना, I'll decode it. ये एक रात पहले हुआ था, तो मैं ये जो हमारा पहले वाला ग्रुप था, हिमांशु वाला, हाँ, और सौरभ, योगेश, everyone, सब, yeah. तो उसमें उनको अंजलि बताया। वगैरह भी थे. तो अंजलि फर्स्ट, इसने ये चीज़ पहले हमारे रूम में कही थी. तो मैं, दीक्षा, अंजलि और ये थे. तो इसने बोला कि आई एम प्लानिंग, यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है उसके मुंह नहीं पे ऐसे नहीं, मैंने बोला था कि अगली बस I was having tea वो टाइम कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को चाय फेंक अगली दो। बस ने बदतमीजी की ना, चाय फेंक दो, जैसे मजाक में बोला था. Yeah. अंजलि लाइक कि यो अंजलि ने पूरा पुश किया कि भाई you हाँ, can do it. वो उसने बेसिकली बोला कि अरे वो चाय छोड़, गंदा पानी, एल्गी वाला गंदा वाला पानी, नाला पानी. And she said कि सदफ के सर पे फेंकना, उसके जो हाँ, blonde बाल है blonde green वाले हो गए. green I हो was like जाएंगे. कि सदफ और मेरा I don't even like I क्योंकि don't तब care उसका about सदफ से बीफ थी कि सदफ हाँ, ने I'm Yes, so वाला. shocked that girls talk about other girls like this. This is just very, very Yeah, shocking. I and mean, then the demeaning. girls were like really evil. No, is what I was. feel like ये जो प्यार वाला की लड़कियाँ थी ना वो बहुत थी. पैसा वाला की लड़कियाँ नहीं, एक्चुअली वो भी अच्छी नहीं थी. दो ही अच्छी थी, खाली दो ही अच्छी थी. Yeah. दो तीन ही. दो नहीं तीन एक्चुअली थी और भी अच्छी थी. सभी अच्छे थे. I mean, और भी थी. I mean निहारिका. Okay. Yeah. This is such a good thing, MTV. Thank you. Now, coming back to you, Akansha. Mike, please. Akansha wanted to piggyback on Yogesh's fame. जरूर, of course. See, फर्स्ट सेकंड डे के बाद ही उसने मुझे बोल दिया था कि मैं ना जीतने के लिए आया हूँ और मेरा लास्ट शो भी इस लड़की की वजह से आ रहा था, तो इस बार मुझे वो रिपीट नहीं करना. तो ऑलरेडी आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो मैंने सौरभ को जाके भी ये चीज़ बोली थी कि भाई ये एक तो फेमस इतना है और अभी मैं पहला रियलिटी शो है, पहली बार ये टास्क वगैरह सब कुछ होंगे और इसका लास्ट शो ये एक लड़की की वजह से हारा है. तो व्हाट इफ़ अगर इस बार अगर मैं चैलेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाऊँ तो मेरे लिए कितना वो हो जाएगा कि सब मुझे ही बोलेंगे, बिकॉज मेरा तो एक्चुअली सब कुछ फर्स्ट टाइम है. तो मेरे को ना बहुत प्रेशराइज्ड फील होता था, बिकॉज मैंने ये उससे बात भी करी थी कि जस्ट बिकॉज तेरा मतलब यू हैव दिस मेन कैरेक्टर एनर्जी. Main character syndrome or energy? The first one is what I realized I later think you on. also told me ऐसा ना कि because Yogesh was very known outside, वो तुझे बोलता था कि ऐसी चीजें मत बोला कर, झगड़े में don't do this, don't do that. सी तब तो वो एक्चुअली मेरे मतलब मुझे सिखाता था कि देख ऐसे दिखते हैं ये ऐसे टाइप के मुद्दे. जैसे कि मतलब बहुत लिटिल चीज़ है, जैसे ना नोटिफिकेशन आया है तो मैं पीछे खड़ी हो जाती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पर वहाँ धक्का मुक्की करके सबको आगे खड़ा होना था. तो वो बोलता था नहीं यहाँ पे भी ज़रूरी है, तेरे को अपना स्पेस बनाना पड़ेगा, तू ऐसे बार बार मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बोलता था कि ऐसा होता है, ऐसा दिखना होता है. तो मैंने योगेश से भी बात करी थी, यार मुझे एक्चुअली ये बहुत टाइम से फील भी हो रहा है कि जब भी ऐसे ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर हम रियलिटी में बातें करते हैं या फिर हम डोम का कुछ डिस्कशन करते हैं, नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि बस तू हिमांशु बात Right. करते हैं एंड हमें सुनना पड़ता है. Right. एंड अगर मैं क्वेश्चन करूँ जैसा कि मैंने डोम में किया, थर्ड डोम में, तो सी व्हाट हैपेंड. yeah. तो वो चीज़ मुझसे और नहीं सही जा रही थी, तो मैं उसको बहुत बोलती थी ये चीज़ कि मुझे तेरा क्या बोलती थी, वो एक वर्ड बोलती थी कुछ उसको मतलब ओवर पावरिंग का ही कुछ तो था कि आई फील लाइक यूर ओवर पावरिंग, ओवर शैडोइंग मी टाइप का. तो दैट वाज ट्रू, But मुझे you नहीं know, चाहिए we था. have heard a few things otherwise. That you've heard that song, no? I've got my eyes on you, by Doja Cat. yeah. I've got my eyes on you. That's what we've heard about you. That it But was no Yogesh. secret कि योगेश आ रहा है Splitsvilla Yeah. और गुल्लू आ रहा है. Anybody who says कि हमें नहीं पता था कि गुल्लू और योगेश आ रहे हैं Yeah. is lying. Stop lying. Don't kid us. Yeah. So वो आ रहे थे. Everybody knew it. It is, in fact, I've heard something very frivolous as well. कि apparently Yogesh likes girls who have Eyelashes. yeah, big eyes, doe eyes. Now, Bro, I would I just have laughed about this so much. मैं हंसते हंसते रो दी थी. ये वापस ऑफ कैमरा वाली बात है और किसके मुंह से निकली है? दीक्षा. दीक्षा. Of course. तो oh, एक सेकंड, I'm so sorry. Yeah. मुझे eyelashes से याद है क्योंकि वो योगेश को पसंद था. आकांक्षा, मैंने अपने बाल कर्ल किए हैं. Do you like me? Oh God, straighten the वो क्या है ना? My Akkutara. Do you like Kashutaru today? Oh my God! No way, God. Kasha, see. मैं ना अब एक्चुअली पेपर से रुको, जोक आ रहा है मेरा. मारो मारो. मैं ना अब
पेपर स्प्रे नहीं रखती हूँ अपने बाजू में। आई कीप अ स्ट्रेटनर। मतलब जो बाजू में दिखे कर्ली बार वाला बंदा पकड़ के बाल सीधे करती हूँ सबसे पहले। देख रहे हो ना गाइस, Yeah. मेहनत दिख रही है। मैं अपने गेस्ट के लिए प्रिपरेशन या वो पूरी स्ट्रेटनर है अभी। प्लीज टेल अस, आपने लैशेस कर्ल की है? यार ये चीज़ तो मैं अब देखो, मैं लैशेस लगाती थी तो आई थिंक वहाँ पे पूरे इंडिया के सामने मैं किसी को नहीं, सिर्फ योगेश को इम्प्रेस करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो सालों से लगा रही हूँ लैशेस। अब मुझे नहीं पता उसको उसी टाइम कैसे दिखी। और ये चीज़ के बारे में विला में कभी डिस्कशन नहीं हुआ, ना ही कभी, ये तो मैंने सुना ही पहली बार है सीधा लाइव तो हर कोई लगाता है। कशिश आपने लैशेस पहनी है ना? आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस बॉयज, यू नो। अब मुझे मन कर रहा है मैं अपने निकाल दूं। so wrong about you। पर लैशेस तो आप भी लगाती थी क्या? This आप is भी the योगेश kind को of- इम्प्रेस कर रही थी? जिस हिसाब से ओ नेवर माइंड। This is the point. Yeah. Solid. It's like school में saying, तुम लिपस्टिक क्यों लगा? Why are you putting baby lips? You wanna impress the boys in the class, हाँ? बट इमेजिन अगर मैंने उसके बारे में इतना रिसर्च किया होता कि उसको बड़ी आंखें आईलैशेस वाली लड़कियां पसंद है, तो मैं क्या रूरू के बारे में रिसर्च नहीं कर चुकी होती अब तक? Oh, thank you for bringing that up because I've also heard that you knew about Ruru because everybody yeah. knew about Ruru. So you knew about it and you were actually waiting. I mean, in the नहीं. most brutal language, you were What? waiting कि आपका कटे ताकि आपको sympathy मिले. Sure. See, I just knew कि रूरू was in the last season. मैंने योगेश से बहुत बार ये पूछा भी था तेरी लास्ट एक्स कब थी, कितने साल टाइम पहले थी, तो उसने 1.5 साल बोला था। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था No उसके mention details. of Ruru whatsoever. No, never. Because I've heard that, of course, Gullu knew, हाँ. Himanshu knew, Yeah. Saurav knew. चलो 3 लड़कों का मुझे पता है they knew. Of course, somebody else also might knew. They might talk to their girls as well. So, I think somewhere or the other, it was like an open secret. So, you see why it is difficult for me to believe कि आकांक्षा को एकदम भी भनक नहीं थी, क्योंकि at this point it is an open secret. Everybody knows. How did you not know? यार आई थिंक सिर्फ इन 3 को ही पता था, हिमांशु, गुल्लू और सौरभ को। तो सौरभ का मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि सौरभ से मैं बहुत क्लोज थी। तो मैंने सौरभ को ये Apparently. जाके मैं लड़ी भी थी उससे कि तूने कैसे नहीं बताया, मतलब मेरे को तो तेरे से एक्सपेक्टेड था कि तुम्हारे सामने कट रहा है मेरा, तुमने रोका क्यों नहीं? तो सौरभ ने भी मुझे ये बताया, भाई ये फर्स्ट डे की बात है जब ना योगेश और मैं साथ में बैठे थे और हम ना हमारे पास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने अपने पास के बारे में बताया, उसने अपने पास के बारे में बताया। तो ऐसे करते करते फ्लो में उसने बता उसने, दिया। I'm so sorry to cut you, उसने अपने पास्ट के बारे में बताया कि अपने प्रेजेंट के बारे में, क्योंकि एट दैट पॉइंट तो वो उसका प्रेजेंट था। उसने आई थिंक एक्स ही मेंशन किया था। या फिर है ना गुल्लू को पता था ये चीज क्योंकि गुल्लू सेम ट्रिप में थे कुछ। Of तो course, yeah, हाँ, same trip, yeah. जब रूरू आई तो गुल्लू ने मुझे बोला ये चीज़ कि सुन, वो उसी को चूज़ करेगा बिकॉज मुझे पता है कि उनका क्या था क्या नहीं। मैंने कहा तेरे को पता था तो बताया क्यों नहीं? मैं तेरे साथ ही तो थी इतने दिन, तूने क्यों नहीं बोला? तो फिर वही था कि अबे वो खुद नहीं बोल रहा, मैं कहाँ से बोल दूँ ये। That makes sense. आप Yeah. क्यों अपने फ्रेंड का सीक्रेट बताओगे अगर वो पर ये नहीं मैंने बता रहा? सबसे जाके पूछा था, तुझे पता था, तुझे पता Yeah, था। of course those guys knew about it. They used to hang together. How would they not know? हिमांशु को तो पता था, आई थिंक वो दोस्त थे पहले से कुछ तो। हाँ, हिमांशु को तो All these guys were friends. Yeah. Like, छोड़ो मैं क्या ही हिमांशु तो बोलूं? सबसे ज्यादा खुश था जब रूरू आई थी। ही वाज तो लाफिंग। आई थिंक वो केक स्मैश वाला हुआ था ना जब, तो तब है ना साइड में अब वो जो जैकेट वाली सिचुएशन थी, तब सबसे पहले ना पीछे से हिमांशु ने ही चढ़ाना स्टार्ट किया था कि अरे रूरू किसकी जैकेट पहनी है तूने, तो देखी देखी लग रही है। और तब ना आई वाज वेरी लो, आई वाज Of course, Himanshu doesn't like you. वो तो करेगा ही. या तो तब वो बहुत ज्यादा करता था। तब हमारा बेसिकली वो बिल्डअप स्टार्ट होने ही लगा था, वो क्या बोलते हैं नफरत वाला। और इसीलिए मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था और मैंने दीक्षा पे वो केक भी लगाया था। यार बट जो भी इवन इफ यू डोंट लाइक समवन ना, तो तुम उसका ऐसे वल्नरेबिलिटी का फायदा नहीं उठा Yeah. सकते हो। हम तो नहीं बोल रहे See, हिमांशु some को, people understand that. एग्जैक्टली हम तो नहीं बोल रहे हिमांशु को कि हिमांशु आपका 2 दांत कहाँ गया, कुछ खाली खाली लग रहा है। नहीं, आई थिंक बोल दिया है मैंने वो आगे। नहीं आई मीन व्हाट वो तूने बाद में बोला ना, उसने पहले बोला दैट वाज सो बैड। या हिमांशु ने मेरे चेहरे के बारे में बोला फर्स्टली। What? ही सेड, तो मैं हंस रही थी, उसका Oh, कुछ है ना yeah. खिल्ली उड़ा रहा था। I'm excited for में। this one. तो आई हैव बीन वेरी इनसिक्योर अबाउट माय फेस एंड माय Cheeks, Why? क्योंकि आई वाज इनटू मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में ना बिल्कुल भी ये सब मतलब बहुत वो करते हैं कि Lean नहीं, यू हैव face टू चाहिए होता है या ना, यू हैव टू एकदम, लूज हाँ. फेस Chiseled फैट, faces, jawlines and या cheekbones, yeah. तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमेशा से मैंने ना लिटरली द लास्ट 2-3 इयर्स तो आई हैव ट्राइड कि मैं ना एट दिस पॉइंट एक तो पॉइंट आ गया था कि मैं सर्जरी करा लूं। मैं इतना तंग आ गई थी। fat removal. या बक्कल फैट, आई वाज लिटरली सर्चिंग अप ये सारी चीजें। But I think it looks pretty amazing. No, it looks very cute on your face. No, but the thing is, तब ना मैं बहुत Himanshu- इनसिक्योर थी। तो उस और ये चीज मैंने योगेश को बताया था और
इसलिए वो भी तब ट्रिगर हुआ था क्योंकि हिमांशु ने ये चीज पब्लिकली बोल दी कि ये देखो हाँ आ गई हंसने में 2 संतरे लगा के आ गई। दिस इज व्हाट ही सेड ऑन टीवी और वहाँ पे सब बोल रहे हैं गुल्लू वगैरह सब। हिमांशु को ये बात कैसे पता लगी? उसने अपने मन से बोला था बस। ये तो मन से बोला उसने, पर योगेश अंडरस्टूड। हाँ बट ये नहीं पता था उसको कि ये इतना मतलब मेरे लिए सेंसिटिव टॉपिक है, ये हिमांशु को नहीं पता था बट उसने बोला। तो जब उसने बोला तो सब उस पर चढ़ने लग गए, भाई कम से कम ये तो मत बोल, लड़ाई में कुछ भी बोलना है तो बोल, शक्ल पे क्यों जा रहा है। और फिर उस दिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बस ऐसे शॉक हो गई। मैंने बोला था उसको, मैंने बोला था कि खुद तो तेरी शक्ल घोड़े जैसी है, तू दूसरों को क्या बोल रहा है। I hope डाले वो, I hope डाले। Yeah, that's true. आयरन ये अब आपके हाथ में आया। It's matching also. It's like कि इसके बारे में होता ट्रिगर मैं क्यों हो रही हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। माइक इसके हाथ में। No, but the thing that Suzanne just said, the Dato wala thing, that was. नहीं, that I said next day also. You did on the show? I said, yeah, on लाइन तो मैंने लिख के दी थी। नहीं, ये वाली तूने नहीं लिखी कौन थी, सी वाली? दांत वाली। दांत ये मेरे को तोड़ 2-3 कमबैक देती थी भाई, 1-2 तो Yeah. इसने बहुत गंदे दिए। अगर मैं बोल देती ना अभी तो बताइए। जब है ना हिमांशु ने मेरे चीक्स के बारे में बोला तो हर्षित मेरे बाजू में बैठा था, तो मेरे को इशारे कर रहा है, सुन उसके दांत के बारे में बोल, दांत के बारे में बोल। तो मैंने बोला कि पागल है क्या ये, वो ऐसे करके। और अगले दिन जो मेरे को गुस्सा चढ़ा तो मैं तो मुड़ के पीछे ही खड़ा था, मैंने मुड़ के बोल दिया, सुन तेरे 2 दांत टूटे ना, बचे हुए 2 तोड़ दूंगी और तेरे हाथ में रख दूंगी गिरगिट जैसी शक्ल की। अब मैं क्या करूं यार, एक लिमिट होती है, उसके बाद नहीं रह सकती मैं वो वाली सेम इनोसेंट अक्कू। अरे it's like हम ऐसे बोलते ही नहीं चीजें, पर अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है तो उसके लेवल पे जाके हम भी, मैं तो ज्यादा बेइज्जती कर देती हूँ लोगों And that is the first time I've said something about this and I don't regret it at all. मुझे लगा बोले I am shook it to my core. Next, Vishu used Suzanne to get ahead in the game. He always wanted to technically play with Preet. मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि मैं यूज हो रही हूँ या फिर जैसे इसको नहीं पता थी। Okay, I want to ask you something else, but I want to hear your answer first. Yeah, so the thing is कि I Yeah, never yeah. knew. Everyone in the villa knew कि इसको प्रीत पसंद थी day 1 से, या इसकी प्रीत वहाँ पर है। I never knew. मुझे पता ही नहीं था। मुझे जब बताया कि वो चैलेंज के टाइम, स्पॉन्ज चैलेंज के टाइम, I was shocked. हमने कि ये कब हुआ? Because he never mentioned प्रीत ever. So that's your answer. No, आगे। Okay. Okay. नहीं बचा है। यार देखो कैसा है ना, प्रीत, actually I never compare myself to सुबह anyone. पनवेल निकलना है। हाँ, I never compare myself to anyone. ठीक है, प्रीत मुझे बोल जा रही है सुजान वीक है। अगर यार मैं वीक होती तो विशु मेरे साथ रहता ही नहीं शो में करने के लिए ना। थिंक है मेरा विशु का बहुत क्लियर था कि वी डोंट हैव अ लव कनेक्शन। ऑफ कोर्स कनेक्शन बन रहा था, आई वाज स्टार्टिंग टू केयर अबाउट हिम एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन उसने प्रीत वाली बात बोल दी। इट्स लाइक कि आप 1-1.5 महीने किसी के साथ रह रहे हो विला में, एंड देन यू हियर दैट ही इज इनटू समवन एल्स एंड ऑल ऑफ दैट। I mean, you would know. या दैट्स द थिंग, वी बोथ इन द सेम बोट। हम साथ में ही वो सब कुछ चला रहे हैं। अरे टूटा जो कभी तारा सजना में। I'm so sorry, I shouldn't have done that. वो तारा तो अब तक टूट ही चुका होगा मुझे लग रहा है। I feel okay, yeah. Anyways, I feel like maybe he was using me to get ahead in the game, but eventually बाद में आके उसको realize हो कि नहीं सुजान अच्छी है। Okay. But Yeah. that's not what we've heard. Last episode that we did was with Vishu, in fact. So Vishu was the one to tell me कि आप दोनों की एक mutual understanding थी that you will explore. No. Yeah, I mentioned कि but Suzanne has not said anything like that, Yeah. and he said no. These are his words, quote unquote, that हमारे में ये डिस्कशन हुआ था, ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम दोनों एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि वी डोंट लव ईच अदर, बट अगर कोई और हमें पसंद नहीं आया तो वी विल इवेंचुअली कम बैक टू ईच अदर. एंड ही ऑल्सो सेड दैट yes, Suzanne was not a very good performer, and I didn't have too many other options, so I had to continue where I did, and eventually of course we got attached and all that, but you had this understanding, and that is why the way you reacted जब वो प्रीत वाला thing was found out was completely irrational, क्योंकि आपको विशु ने सब कुछ बता रखा था and you were okay and a part of it. I think ये ना आई टेल यू, ये फर्स्ट 2 days की बात है जब विशु नया विला में आया था और इन दोनों का कनेक्शन रैंडमली बन गया था बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीवन टू परफॉर्म. तो इसने ही बोला था कि मेरे को एक्सप्लोर करना है, मुझे टाइम चाहिए. स्टार्टिंग दिस इज फर्स्ट 2 days. फर्स्ट डोम में मैंने कहा था कि आई वुड वांट टू एक्सप्लोर बिकॉज काफी लड़के थे वहाँ पर, एंड मैंने किसी से बात ही नहीं की थी जस्ट बिकॉज गुल्लू एंड गौरिश का ग्रुप था विशु के साथ, एंड गुल्लू योगेश का दोस्त था, हमारी ऐसा ग्रुप बन गई थी 6 लोगों की. बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लाइक ठीक है परफॉर्म विद हिम, बट वो हुआ नहीं अच्छा परफॉर्म पेंगुइन वाला. एंड देन उसके बाद all of a sudden he's like, can I perform one challenge? Just perform. No love connection, no exploring, nothing with Preet. And I was somewhere not okay with it. I'm Of like, course, ठीक है, I mean, if you want to, it's fine. I can, perform with Ayush because उसने मुझे pitch किया तो only performing. But हम connection है because we went on a goddamn date, bro. And the thing is कि for me it was really hard to accept Vishu in the start. Because he's he's a nice person, but he's not someone I would go for in real life.
होता है टाइप डिफरेंस. Why? Is it looks? Is it personality? पर्सनैलिटी, नॉट लुक्स एंड एवरीथिंग, बट पर्सनैलिटी एंड काफ़ी चीज़ें. उसके बाद आई स्टार्टेड टू गेट लाइक, आई स्टार्टेड उससे मैंने बात किया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आई एम लाइक, यू नो, ही इज एक्चुअली नाइस, हम काफ़ी कंपैटिबल भी है. एंड देन आई एक्सेप्टेड क्योंकि यू नो व्हाट, वी आर कनेक्शन, इवन दो वी डोंट हैव अ लव कनेक्शन, बट आई समवेयर डू फील कि ही केयर्स अबाउट मी, आई केयर अबाउट हिम. Okay. एंड वो केयर दिख गया था मुझे जब उसने प्रीत के बारे में वो सब चीज़ें बोली थी. बिकॉज इफ अ गाय केयर्स अबाउट यू, वट एवर इट इज़, वो आपके बाजू में बैठ के दूसरी बंदी को ये सब नहीं बोलेगा, बिकॉज दैट इज प्योर डिसरिस्पेक्ट. तू अचानक से क्यों उसको बोल रहा है कि अब मेरे साथ खेल? क्योंकि उसको लगा ही इज नॉट कंपैटिबल विद यू. अभी अचानक से लगा, Compatible- अचानक से लगा. मे भी उसको लग रहा है कि तुम नहीं खेल पा रहे. कंपैटिबिलिटी की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अटैचमेंट शुरू से. वाओ. But Suzanne, you know, Yeah. he did mention in pretty clear words that he didn't think कि सूजी उसके बिना गेम में टिकती. वाओ. उसने तो ये भी बोला थोड़ा था सा शो में, उल्टा. उस एग्जैक्टली उल्टा है ये तो. वो प्रीत के साथ रहता ना, वो शो में रहता ही नहीं जितने टाइम जैसे तक प्रीत प्रीत था. प्रीत कैसे निकली? मैं थ्रोन पे बैठी थी, मुझे आँख से आंसू नहीं आ रहे थे, मैं हिमांशु बन गई थी वो दिन पे. आई एम लाइक आंसू आ जाए. यू ट्रस्ट मी, आई वाज सिटिंग ऑन थ्रोन. आई एम लाइक एंड दे वेंट द ऑरेकल. दैट इज सो एम्बैरेसिंग. पहली बात तो तुम किसी का कनेक्शन चुराने की कोशिश करो, तुम्हारा कनेक्शन एक दिन पहले निकल गया. प्रीत, उससे लगता है कि मैं नहीं टिक पाती. But I think it was the other way around. Other way around. I think everyone thinks that. Next. He never, I mean, he used to always undervalue me, you know. Yeah. मेरे मुंह पे अच्छे से रहता था, बट या ओके. Thank you. Next, Akansha. Akansha got her closure on the show. Yogesh did apologize and she did accept. अब बाहर ये जो भी कर रही है, she's actually playing the sympathy card and milking the attention and the sympathy that she's getting right now. जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था. ये इट वॉज नेवर मेंट टू हैपन, बट ये चीज़ हो गई. एंड मुझे एक को चूज करना था. मैं आपको चूज करता, ये टूटती पूरी. मैं इन्हें चूज करता, वो टूट. जो चीज़ अभी हो गई है, आई एम जस्ट वेरी सॉरी. See, on stage I got my closure. और आई थिंक उसके बाद मैंने पूरा ट्राई किया टू मूव ऑन. मतलब ऑब्वियसली तुम विला में हो, तुम ब्लॉक नहीं कर सकते उसको, तुम Right. बाहरी दुनिया की तरफ, यू कैन नॉट एक्ट लाइक दैट. तो मैं पूरा कोशिश करती थी कि वो जहाँ से भी जा रहा है मैं देखूँ भी ना उसकी तरफ. एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग दैट डिसलाइक वाला फीलिंग टुवर्ड्स हिम, Yeah. कि ऑलमोस्ट टुवर्ड्स हेट्रेड वाला चीज़, क्योंकि मैं रोज़ उन्हें देख रही हूँ वो चीज़ें करते हुए जो हम Right. करते थे. तो मुझे वो बिल्ड होने लग गया था. बट देन आई थिंक आउटसाइड द शो, अब क्योंकि ये शो एपिसोड्स अब एयर हुए हैं, आई कैन ओनली ओपन अप अबाउट माई फीलिंग्स एंड वट एवर आई वेंट थ्रू इन द शो. अभी बोल सकती हूँ मैं, पहले नहीं बोल सकती थी. पहले लाइव में मुझसे हज़ारों चीज़ें पूछते थे, मैं उसका आंसर नहीं होता था क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती. स्पॉइलर हो जाता. स्पॉइलर वाला अलग दिक्कत. अब जब फाइनली एपिसोड्स आए हैं, जब मुझसे लोग पूछ रहे हैं, ये चीज़ यही था मेरा शो, दिस वॉज एवरीथिंग. तो मैं बात किसके बारे में करूँ अगर मैं यही हुआ है मेरे साथ, इसके अलावा मैं क्या बात करूँ? Fair. And also people, if you're so sure कि she is milking the sympathy and the clout, why are you giving the sympathy and the clout? Don't give. मत दो. Next. Suzanne is थाली का बैगन. She has no opinion of her own and just aligns with whoever will give her shelter, or I say safety for the week. Honestly, the only security I was getting in the show was my throne. Sorry, I loved my throne more than anything. Not more than her, but yes. और मेरे को shelter कौन दे रहा है यहाँ पर? मैं MTV वाले. विशु. हाँ, MTV वाले आप दे रहे हो. Yes, I'm dependent on you all, but no one else. What the नहीं, बैंगन से कंपेयर क्यों कर दिया मुझे? स्टार्टिंग में अगर ये बोलते हैं ना तो आई वुड अग्री. स्टार्टिंग में आई वाज प्लेइंग वेरी सेफ एंड आई वाज लाइक कि हाँ ये जो हिमांशु का ग्रुप है, यू नो व्हाटएवर, बिकॉज़ आई डोंट हैव अ कनेक्शन. लेटर आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट हु आई एम. आई एम वेरी रॉ, वेरी अनफिल्टर्ड, एंड आई एम लाइक कि पीपल आर गोना सी दैट लेटर ऑन. सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट, जब भी विला मर्ज एंड ऑल ऑफ दैट हुआ, आई स्टार्टेड बीइंग वेरी रॉ एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एवरीथिंग. मैं लोगों को मुंह पे बोलती थी कितनी चीजें डोम में. डोम हैड हाँ, आप लोगों के मुंह पे बहुत चीजें करती थी. We saw that. डोम हैड बिकम माय फेवरेट स्पॉट. मोर देन टास्क आई वाज एक्साइटेड फॉर डोम. आज मैं किसकी मारूंगी मैं सोचती थी या वैसा. किस पे मारूंगी? Now that's more like it. Because bro, people started taking me for advantage कि हाँ इतनी sweet लड़की क्या ही करे. Perfect. Akansha, Yeah. you lost all your female friends, including Diksha, Anisha,
Anjali, because apparently you were no longer in alliance with Yogesh, Gullu and the gang. Yeah. So were all the friendships, female friendships, fake? I think all the friendships except hers were fake. क्योंकि I think at one point मेरा और सौरभ का भी खराब हो गया था towards the end. तो तब ऐसा हो गया था कि सिर्फ सुजैन थी और उसके अलावा मैं एक जने पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी बिकॉज जिनको मैंने दोस्त बोला था, गुल्लू, गौरेश, विशु, ये ज़लक, कायरा, जितने भी लोग थे, आई थिंक सब ने, निहारिका के अलावा, एंड या दैट्स इट. तो इन दोनों के अलावा आई डोंट थिंक किसी ने भी मतलब सब ने मुझे धोखा दिया. सब ने कहीं ना So कहीं you will call those friendships fake? Yeah, they were fake. Suzanne, next one is for you. Yes. Suzanne is actually technically really weak. You could not take a stand and stand up to Sandy and Sadaf when they were actually खड़े होके bullying बता, you. खड़े हो. ये लोग कहाँ से वीक हमारी लड़की है. हील पहन के खड़ी हो गई मैं. No. So starting में of course that's what I'm saying, क्योंकि वो मेरे लिए न्यू एनवायरनमेंट था यार. वहाँ पर मुझे I did not know anyone. Yeah, लेकिन Suzanne, multiple times you were, and this is my personal question as well. Yeah. Multiple times you were literally bullied in the dome. आपकी कोई किसी की इतनी हिम्मत हो रही है कि आपके वो मुंह पे चढ़ के आ रहा है, आपको वो धक्का दे रहा है, आप पे चीख रहा है, and you were very timid. It looked like you were scared. So I was. You were. Starting में I was. तब ऐसा भी था ना कि I did not have, मुझे ऐसा बैक सपोर्ट भी नहीं था. Like as in like मेरे खुद के दोस्त जो थे ना ही you वो felt मेरे like you family थे. needed support. Yeah. And was Akansha not enough? She was there, but then again it's like I used to not open up इतना because वो दीक्षा से close थी, है ना? So me and Akansha were not close इतना in the start. इसने एक बार स्टैंड लिया था मेरा, हाँ, क्योंकि हद से ज्यादा क्योंकि उसी दिन वो चार्ज अप हुई थी सदफ. when she pushed me. या तो उस दिन ना एक दिन पहले ये मेरे रूम में आके इसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था और इसने मुझे बोला था भाई आई थिंक मैं ट्रॉमा लेके चल जाऊंगी इस शो से बिकॉज ये है ना एक हद तक ही मैं सहन कर सकती हूँ, उसके ऊपर तो ये स्ट्रेट अप बुली कर रहे हैं मुझे, मतलब Right. जहाँ जहाँ बोलने नहीं देते. तो ये चीज़ मैंने अगले दिन डोम में उठा दी सर के सामने एंड पीपल वर लाइक तू क्यों बोल रही है अचानक से, तेरा क्या बनता है, Yeah, I तुझे remember. footage चाहिए क्या ये वो, एंड आई वाज लाइक कि जब सेम चीज़ सदफ करती थी तब लोग नहीं बोलते Such a तब good तो- friend you are to Sandy. People deserve a friend like you. या और मैंने कर दिया तो फुटेज तो ऑल्सो वो एक कोई मम्मी पापा वाली बात भी ना फर्स्ट Yeah, टाइम सैंडी ने Sandy स्टार्ट ने करी बोली. थी और जो आज मुझे बोल रहे लोग कि मैं लोगों के मम्मी पापा, वहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ. I feel like पूरा मेरा सब ना कुछ. काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है शो के बाद, बिकॉज आई टेल यू रियल लाइफ में ना मैं इतना फाइट नहीं करती हूँ किसी से. चल झूठी. ऑनलाइन करती हूँ बस. Exactly. Yeah. The fuck. ये सब नहीं भाई, करती public के सामने? या हाँ ऑनलाइन चल जाएगा. मेरे मुंह के सामने कोई आके तब मुझे कोई बोलता है ना तो आई वुड तो मतलब आप कीबोर्ड वॉरियर हो. Moving on. Yeah. Now, बाल. such a sweet comment this is. Akansha basically triggered her entire personality, looks, the way she breathes to be Yogesh's type. See, the way I've been on the show Lol. is what I'm exactly in real life. मेरे को Yogesh's type. नहीं मतलब मेरे को रेडी होना, मेकअप, आई एम अ पैजल गर्ल, मुझे ये चीज़ें मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी. तो यही चीज़ें मैं शो में भी करती थी एंड मैं बाहर आके भी करती हूँ एंड आई थिंक सेम आई एम लिटरली द सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द शो. पर अगर मुझे उसका टाइप पता होता तो आई थिंक रूरू एंड मी आर Completely कम्प्लीटली different, डिफरेंट. yeah. तो मैं उसकी तरह होती, मैं भी टैटू वैटू सब होता मेरे, बट आई एम अ लिटिल मतलब ऑपोजिट हूँ मैं एकदम तू भी उसकी. Yeah. चल बोलती. वो तो ठीक है, वो सब नहीं बोल रही मैं, पर वही चीज़ है कि आई एम एग्जैक्टली डिफरेंट. अगर मुझे उसके टाइप का बनना होता तो मैं वैसी बनती. दिस इज सेंसलेस. Okay? Suzy. Isn't it quite embarrassing that no boy from the entire villa wanted to perform with you? The thing is that I did not explore. मैंने काफी लोगों ने स्टार्टिंग में बात भी की लोगों से to build a connection, just to explore and all that. Why I did did not you do not? any of that because वो टाइम पे स्टार्टिंग में I'm very picky when it comes to guys. Okay, very. So you didn't picky. like any of them? I don't like any of them. No one. What about Saurav? Saurav and I, we were really good friends. हम same group में थे. And Saurav was one of the people who used to actually make me feel like I am a part of that group. ठीक है? So he did not have a connection. मेरे पास भी नहीं था वो time पर, and we thought कि we can perform together. So these boys were just not your type. No, they were not my type, and also मैंने सबको दोस्त बना लिया था. So if they don't pick you, it's because you didn't pick them. Yeah. And Vishu was your type. No. Then what happened over there? Vishu came to me and the thing is कि I was like कि ठीक है, you know, गुल्लू वगैरह हम दोस्त हैं, we can perform together. उतने सबके connection बन गए थे.
and I was like, you know what, Suzanne, अब और लोग आने नहीं वाले हैं. So none of these boys were your type, No. but just because Vishu came to you, you were like, चल ठीक है. Starting में मेरे पास आयुष आया था, but again I was like, I felt like Ayush wasn't good enough for me because वो ना चेलागिरी बहुत करता था. Vishu नहीं करते थे. विशु चेलागिरी नहीं करता था. Or is it because Vishu had split coins, an alliance, people to look back at him? No. गुल्लू का दोस्त? No, that was not the case. मुझे split cards पता ही नहीं थे starting में. उसके बाद split cards really? सबसे highest split cards तो मेरे पास ही थे विला में. तो मुझे क्या जरूरत उस विशु का all of that. Yeah, exactly. Okay, ठीक है. Akansha is one of the most rejected splits villain. She clearly gave up her throne for Yogesh, who did not give a flying care about it. And then the next time when she was on throne, Gaurish left her for Zalak. So you've been rejected twice. Throne, boys. Yeah. What do you have to say? I've been saved twice by Oh, God. optimist. But I feel, see, everything that happened in the show, I think, जैसी मैं शो में घुसी थी ना, एकदम sweet, innocent, मतलब लड़ना नहीं होता था, मुझसे लड़ाई होती नहीं थी. I think towards the end, I was a different Akanksha. I was Akanksha 2.0, Yeah. and that is the Akanksha that I've, मैंने कमाई है वो Akanksha शो के बाद, and I'm extremely grateful कि ये दो situations मेरे साथ शो में हुई. ये दो नहीं, सारी situation जो दोस्तियों में मुझे धोखे मिले हैं, ये मारपीट जो हुई है, आई थिंक ये जो जितने भी लड़के वड़के वाली सिचुएशन, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एवरीथिंग हैपेंड. Take. Perfect. Yeah. Next, it's also for you, Akansha. I think by this time you can drive a lot of vehicles out there, 3-wheelers, क्योंकि third wheeling करने की तो आपको आदत हो गई है. Apparently, not apparently, well, वहाँ you पे were a third wheeling third कर रही है wheel. वो. See, look at your face. You were a third wheel Family to photo है वो. Ruru and Yogesh, and then you were a third wheel to Gaurish And Zalak. See, What do you have to say? आई थिंक गौरीश वाला गौरीश वाली चीज़ का आंसर तो गौरीश ने अपने सारे इंटरव्यूज में दे दिया है कि Oh, he did. या मतलब आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट इट बिकॉज You chose the wrong curly hair वो जो guy. बैंगन की बात हो रही आई थी. चोज द रॉन्ग हेयर ओनली. अब मुझे सीधे बाल पसंद है, मुझे लड़का ही नहीं पसंद. Gaurish नहीं पसंद आपको? वी आर गुड फ्रेंड्स, दैट्स Just friends. Yeah, just You don't feel for him? No. Why? He is your type. आई थिंक जितना ट्रॉमा मुझे एक लड़के कर्ली हेयर गाय से मिल गया है, That cannot be the reason. नो एक्चुअली इट्स आई रियली आपको तो Oracle ने भी दोनों बार कह दिया कि भाई आइडियल मैच तो आप ही हो. Oracle के कैलकुलेशंस के अनुसार आप दोनों एक आइडियल मैच हो. आई फील अगर झलक नहीं होती ना शो में तो अब तो शो खत्म ना. ही वुड. अभी तो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, बट आई थिंक जो सेकंड टाइम ये जो ऑरिकल वाली चीज हुई है ना, फर्स्ट टाइम वी वर स्टिल वेरी लाइक क्लोज गुड फ्रेंड्स, बट सेकंड टाइम जब चीज हुई तब आई थिंक गौरेश एंड मेरे बीच में ना थोड़े डिफरेंसेस भी थे, बिकॉज वो क्लियर नहीं रहता था कि उसको झलक चूज करनी है, उसको मैं क्या हो गया भाई. एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. सकते. नहीं भाई ऐसा नहीं है, हो सकते हैं. तो ऐसे तो मेरे सारे ये हमारे पे बैकफायर हो जाएगा. नहीं भाई दोस्त हो सकते हैं. बड़ा कूल बन रहे थे एक सेकंड. भाई तुरंत मुझे ग्राउंड रियलिटी हिट की कि अभी रील कटेंगे. रुको, नहीं भाई हो सकते हैं. फ्लैशबैक्स. Major. Yeah. Okay. Coming back to the next question. This is actually for both of you. Okay. And this is kind of something that many people want to know. Akansha and Suzanne's friendship mein, Suzanne, you are the one who latched on to Akansha. She didn't even consider you a friend initially. You latched on to her because clearly the narrative of the show was benefiting to her, and now outside the kind of response that she's getting and the kind of response others are getting, she is being praised. So you latched on to her because that is benefiting to you. So I'll tell you, day 0 जो था ना, before we got into the villa, we both were in the same room. हमें ऐसा भगवान ने मिलाया ही साथ में, ठीक है वो टाइम पे. तो I connected उसके साथ बहुत ज़्यादा, realize कि हम दोनों की personality काफ़ी same है. भले ही show के start में मैं दिखा नहीं पाई थी personality cause you know XYZ reasons and all of that. So starting में I used to consider her my friend, ठीक है, but मुझे ऐसा लगने लग गया था कि I mean इसी से मैं बात करती थी. I used to share everything with her, that's it. And मेरी खाली यही दोस्त थी starting में. And उसके बाद पैसा विला वगैरह हुआ. And इसके साथ भी काफ़ी चीज़ें, दीक्षा ने इसको बिट्रे किया, all of that. And it's like we both just had each other. That's I think all. जब भी इसके लिए situations खराब थी, I was there. Yeah. मेरे लिए खराब थी, she was always there. Yeah. तो वो But चीज़ wasn't it Suzy who made more of an effort to be your friend than you?
आई थिंक शुरू में शुरू में मैंने बहुत किया था शुरू में या आई डिड नॉट कंसिडर हर अ गुड फ्रेंड क्योंकि क्लोज फ्रेंड गुड नहीं क्लोज नहीं गुड फ्रेंड क्योंकि जो दीक्षा वाली चीज हुई थी अच्छा, वो bitch कि वो वाली बिच बात, वाला वो बोला भी तो नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब शी कैन यू नो मतलब ऐसा बाइट कर सकती है वैसा पीछे सांप हो सकती है बट टर्न सारे आई फील लाइक कि ना आकांक्षा को लाइक प्रॉपरली रियलाइज कब हुआ कि सुजान मेरी दोस्त है बहुत ज़्यादा वाज ड्यूरिंग द दीक्षा फाइट no नहीं it was way Before? see it Perfect. happened when Ruru entered और जब हाँ वही मतलब रूरू वाला आर्क में she was vulnerable and only we both were there for each other Okay. yeah Now, Akansha and Suzanne are both pathological liars. Himanshu never body shamed anybody, and Sandy never made fun of either of them after the entertainment task. एंटरटेनमेंट टास्क के बाद सैंडी ने मजाक नहीं उड़ाया था मेरा इसका तो उड़ाती थी एंटरटेनमेंट राउंड में शी वाज अपसेट ऐसे उसके बाद विला जाने के बाद शी वाज कि मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा बट मेरे को फिर याद आया कि तो आकांक्षा आई तो डिजर्व करती है और उसको देख के जो मैं सैटिस्फैक्शन सो ऑफ कोर्स इन द मोमेंट शी वाज सैंडी के लिए ऐसा? कुछ भी नहीं किया भैंसे इसने खोल इसने दी खाली हाँ गांव में आके भैंसे खोल दी सौरभ बोलता है वो छोड़ो नो तो शी टुक अ स्टैंड फॉर मी ना कि मैं मुझे बुली करती उस हूँ storm में that is the reason why हाँ, Sandy hates शुरू you so से। much. Yeah, yeah. That is it. I think शुरू में She really doesn't like you. yeah That is it. also because हिमांशु doesn't like her ना तो हिमांशु तो उसका आइडल मैच है ना नहीं ये उसके तब हिसाब हुआ से। था जब मैंने उसका नाम लिखा था फॉर एलिमिनेशन Okay. तब से उसको बहुत ज्यादा Okay. Next one is for you, Akansha. इसके बारे में भी तो मैं ही बोल रही हूँ Boys actually realized that Akansha was nothing but a liability. That is why they switched and they didn't want to continue with you because you could not perform any task. I think I think the boys would be Gullu, even Yogesh, Goresh. आई थिंक जितने भी टास्क मैंने योगेश के साथ जीते हैं आई थिंक 50-50 था पूरा आई थिंक मैं मतलब ये चीज़ तो अगर कोई हेट फैलानी है फैला दो इवन द जो आई थिंक जब रूरू के आने से पहले वाला जो टास्क था दैट वाज फुल्ली लाइक अ गर्ल बेस्ड टास्क तो लड़कियों का ही मेन उसमें था जब The last task that I am remembering, Yogesh did lose गुल्लू वाला because you couldn't perform. या दैट वाज पैसा चैलेंज दैट वाज द ओनली चैलेंज वी एवर लॉस्ट कायरा वाला ना कायरा गुल्लू कायरा वाला और आई मेड श्योर कि अगला And वाला when you चैलेंज वो performed जीते with Gullu, हाँ and when you performed with Gullu, या सी वही चीज़ है जो कंपैटिबिलिटी वाली चीज़ होती थी आई परफॉर्म्ड रियली वेल बट जो ये वाले टास्क नहीं जो proper task या होते तो हैं, वो तो मैं task. नहीं करती थी वाला तो मेरे लिए इट्स भी वेरी tough क्लियर था। आगे जाके आई हैव एज्ड फ्यू टास्क क्योंकि मुझे गुस्सा इतना रहता था तो मैं अलग ही बन गई थी और तब तक मुझे प्रैक्टिस हो But गई the थी boys कि did consider you a liability for those tasks. आई थिंक गुल्लू ने किया होगा मे बी योगेश नेवर डिड एंड गौरेश भी नेवर डिड क्योंकि इक्वली हकते थे हम Why did Goresh leave you then? Why did he leave me? बिकॉज आई थिंक जब उसने वो डिसीजन लिया उससे एक दिन पहले मैंने उसको गुस्से में बोला था कि सो अपेरेंटली कॉरेश ने मुझे ये चीज़ कही थी कि देख मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि अपन दोनों दूसरी बार आइडल मैच बने तो फिनाले तक अगर जाना है तो अपन दो ही साथ जा सकते हैं बिकॉज आइडल मैच ही आगे तक जाते हैं उसको ये चीज़ मतलब लगता था कि आइडल मैच ही जीतेगा शो तो उसने बोला था कि ज़लक वाली सिचुएशन अब क्योंकि ज़लक और मेरा भी एक कनेक्शन था तो अब उसको मेरे को जो धीरे धीरे करके आई हैव टू साइड लाइन हर ये उसने Goresh said what? Oh yes. दिस आई ऑल्सो मैंशनड इन द एपिसोड कि जब उसने ज़लक को चूज़ किया था तो उसने मुझे ऑफ कैमरा ये बोला था और विशु को भी यही बोला था विशु को भी ये चीज़ पता है विशु ने भी झूठ बोला था उसने इस ये चीज़ का। कहा था कि मुझे कैसे कैसे करके ना आई वांट कि ज़लक शो से निकल जाए ताकि आई कैन पेयर अप विद हर बिकॉज ही लाइक्ड हर एंड ज़लक लाइक्ड का नहीं पता मुझे नहीं, पहले like पर करता था पहले ना। करता था बट देन सेकंड वाले में जब दूसरी बार हम आइडल मैच बने तब उसने यही बोला कि देख आगे तो अपन साथ ही जाएंगे दिस इज वेरी क्लियर टू मी और Even I गुल्लू was और shocked. विशु भी उसको यही समझाते थे एंड तक बट देन ऑन कैमरा विशु आल्सो फ्लिप्ड एंड गुल्लू I आल्सो was फ्लिप्ड disappointed. I was sitting Yeah. right there. यहाँ पे And विशु he था, left the यहाँ पे throne. ज़लक थी. and I had to leave my safe side because of them And Goresh says that he did that because he just listened to his heart. He liked Zalak too much. And with that, girls, we've come to the end of our first segment, which was the trigger warning. Now, This do was you the have? first segment. Yeah, of course. Do you have anything triggering that you want to say? Any triggering statements? Did any statement trigger you? Have you heard any statements about yourself that triggered you that you want to clear once and for all? This is your chance. can I I think ये वाला the question you asked me कि सुजान शो में नहीं रहती with विशु के बिना and all of that. I do not like that. That really did trigger you, Yeah, didn't it? And the fact that you told me Successful. you told me कि विशु ने बोला ये बात.
And I was like कि bro what the hell, because विशु मुझे literally बोलता था कि अभी भी he texted me कि shit I fucked up Suzanne, मुझे प्रीत वाला segment whatever जो था कि he had feelings for प्रीत उसको दिखाना नहीं चाहिए था show में because बहुत चीज़ें खराब हुई, and I was like कि So these guys are so fucking image conscious on the show. and the Like thing it's is a that reality I show, used guys. to Be for real. I told him listen if you like Preet go to her. I Yeah. don't care I don't want to be here किसी की backup नहीं बनना मुझे whatever. He's like but मैं task के साथ जीतता हूँ ना अच्छा, and people love us. चिट भी मेरी पट भी मेरी टास्क वाली भी प्यार वाली भी दोनों चाहिए. And You would know that. Yeah. अरे इसके ऊपर बेचारी मार रहे हो आप क्यों मैंने क्या बोला So it's all यही है यार. मैं शो में जब तक थी एंड तक whatever मैं खुद के दम पे थी, मैं थ्रोन पे भी खुद के दम पे गई, लक whatever. Okay I survived the entire show on my own. Yeah. Okay of course performance भी जो भी थी split coins हम दोनों ने equally earn बराबर, किए. yeah, It's not that कि उसने But you मुझे would like to debunk this statement. yeah like Okay. it's not true at all. And for you? आई थिंक ये एक चीज़ मुझे बोलनी है. ये मैंने शो पे भी बोला है, आई डोंट नो एपिसोड्स में कितना है, बट गौरेश ने अपना थ्रोन नहीं मतलब जो भी सेफ साइड से वो छोड़ा झलक के लिए, तो ही बिकेम अ हीरो. अब मुझे उसके बारे में बुरा नहीं बोला क्योंकि बाहर आके हमने सॉर्ट कर लिया सब बोलना, कुछ. तू सच बोलना. बट मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि एपिसोड अब आया, मैं क्या करूँ. Yeah. तो बेसिकली यही हुआ था. उसने ऑफ कैमरा एक दिन पहले हमारी जब बात हुई थी उसने मुझे बोला कि देख मुझे समझ आ गया कि आगे तक अपन नहीं जा सकते हैं. मैंने कहा देख अभी तू मुझे समझ आ रहा है क्योंकि झलक भी मुझे आके ये चीज़ बोल रही है कि तू झलक के साथ आगे परफॉर्म करने चाहता है और मैं बीच में आ रही हूँ, पर तू मुझे यहाँ पे अलग चीज़ बोल रहा है. तो तब मैं उस पर थोड़ी गुस्सा करी. तो आई थिंक उसका थोड़ा ईगो ट्रिगर हुआ था. हमारे ईगो क्लैशेस होते थे, हम टास्क में भी होते थे. जब मैं उसको बोलती थी वो नहीं सुनता था, वो मुझे बोलता था मैं नहीं सुनती थी. हमारे ईगो क्लैशेस बहुत होते थे. उस दिन भी हुआ और उस दिन वो थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने बोला मैंने कुछ बोल दिया होगा कि भाई अभी इतना आगे तक है ना तू सेफ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तो अब एंड मोमेंट पे मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मुझे छोड़ देगा और फिर झलक को कर लेगा. तो मुझे अगर है वैसा झलक को चूज करा मुझे अभी बता दे ताकि आई कैन प्ले माई गेम माई ओन गेम. तो उसने बोला कि भाई पहले तो तू ये मत सोच कि अभी तक तू मुझे लाई है यहाँ तक आगे तक, अगर तू ये सोच रही है तो फिर तो वो उसका ईगो आ गया. तो तब हमारा लड़ाई हुई और फिर हमारा वो खत्म हुआ कॉन्वर्सेशन, वो चला गया. उसके बाद मैं पूल साइड बैठी थी और ये ऑफ कैमरा बात है, मैं पूल साइड बैठी थी, आगे कायरा और झलक बैठे थे. एंड फिर गौरेश आया, झलक स्टार्टेड क्राइंग और मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो ऑपोजिट साइड थे, पर मुझे लास्ट में ये सुनाई दिया कि यू टेल हर यूल चूज मी, ऐसे ऐसे करके कुछ रोते रोते वो बोली. और फिर उसने बोला हाँ हाँ ठीक है मैं बता दूंगा ये, और वो सब मुझे देख रहे थे. तो आई न्यू व्हाट वाज गोना हैपन, आज नहीं तो कल होने वाला है. तो उसके बाद मैंने उनसे बात ही नहीं की. मैंने कहा भाड़ में मैं इतना तो मैं पीछे किसी के नहीं पड़ सकती. मैंने कहा जो भी होगा डिसीजन देखा जाएगा. उसके मुझे तो पता है कि अगर ये इसका कुछ भी डिसीजन है आई कैन मतलब वाउच फॉर माई सेल्फ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगी अपना. तो फिर उसने फिर जब उधर बोला कि मुझे अपना वो थ्रोन छोड़ना है, अपना सेफ साइड छोड़ना है, तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि ये कौन सी ट्रिगरिंग स्टेटमेंट आप डिबंक कर रहे हो लेकिन कि वो बोल रहा है कि प्यार के लिए उसने छोड़ा. अच्छा, that was not the case. Yeah, also झलक की साइड short case नहीं, बता झलक दूं की मैं? साइड से मैं बताऊं, झलक ने भी मुझे ये बहुत बार बोला है कि जब मोहित मैं झलक और ये गौरेश हम चारों का चल रहा था कि प्यार चैलेंजेस मैं गौरेश करते थे और पैसा वो दोनों करते थे. तो एक बार हुआ कि झलक ने मुझे बोला कि भाई प्यार भी तू गौरेश के साथ कर ले, प्यार वाले चैलेंजेस भी और पैसे वाले भी, क्योंकि ना अभी देख ना मैं सेफ साइड होती हूँ ना मेरे पास स्प्लिट कॉइन्स बचे हैं ज़्यादा. तो अब है ना अब वो तेरे साथ आइडल में आ जाए तो मुझे भी आगे अपने गेम का देखना है. तो मैं नहीं कर सकती है कि मैं गौरेश के साथ खेल रही हूँ क्योंकि हम साथ में खेलते हैं तो हम हमेशा हारते हैं. गौरेश इज नॉट अ गुड परफॉर्मर, वर्ड टू वर्ड शी सेड. फिर ये चीज जाके मैंने कायरा को बोली कि भाई कैसी है वो, ऑन कैमरा तो बोलती है कि नहीं वो मेरे को गौरेश चाहिए, गौरेश से प्यार है, ये वो फीलिंग चाहिए वो, और फिर पीछे जाके Can I also add something? he's not a good performer, I can't So win with him. whatever Zalak was going through ना कि you know he's idol Gaurish is idol match and you know she's like perform नहीं कर पा रही whatever, she was going through all of that other woman वाला scene. She was fully supporting Vishu and Preet to get together and मुझे बाहर निकाला like picture से. And I was like कि girl you are literally going through this and तू चाहती कि कोई और बंदी भी go through करे. And she was like कि प्रीत मेरी दोस्त है and I don't know, मेरा इतना अच्छा कनेक्शन चल रहा था विश्व के साथ. We were winning. We had become one of the favorite, you know, couple. Is a good friend, but yeah. Perfect. And with that, guys, we are done with the grilling session, with the triggering session. So give me the hot mic. अब क्योंकि मैंने बहुत ग्रिल कर लिया आप लोगों को. And my show is not just about grilling, okay? It's about reliving nice memories, nice moments, and having a gala time all together. Thank God. So let's take a walk down the memory lane. Shall we? आप दोनों को मुझे एक एक करके बताना है quickly. A moment from the show that you would like to relive. When I earned 50,000 split coins. Okay. And the entire villa was like
cheering for me. That's fair. Yes. When I won that task, the split coins वाला, and I was the मतलब मेरे सबसे ज़्यादा split coins थे, and I think उससे पहले मुझे बहुत लोग बहुत कुछ बुलाते थे, and that was the time that I proved myself. A moment from your journey that you would want to frame in your life's walk of fame. Wall of fame, sorry. जल्दी जल्दी बताओ. I think for me it's Ship Ship Hurry challenge. Yeah, that was a good one. Yeah, because वो time पे everyone were like blown. They were like, what? We never knew Suzanne is capable of all of that. And I was like, Okay. And you? I think when I went on the throne for the second time, and this time I did not like lose it for a boy this time. So I say as far as I was there that's for good, me. that's good. One thing you would want to undo. अभी मैंने जैसे वापस देखा ना, when they were on the stage and they मतलब उन्होंने एक दूसरे को I love you वगैरह बोला, तो it was obviously very disrespectful मतलब मेरे perspective से. तो जब जाकर, क्योंकि मैं तब still I was in that zone and I had that soft corner for him, तो तब मैं उसके लिए ना मैंने माइक पे भी ना बहुत ऐसे अच्छा बोला, और मेरे को ऐसे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि जो अंदर से आ रहा था मैंने वो बोला, बट आई वुड एक्सप्रेस माई एंगर एंड द डिसरिस्पेक्ट दैट आई फेल्ट दैट. Okay. You? रीडू मैं वही करूँगी. द फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन द थ्रोन मैंने आयुष को निकाला था, मैं उसको वापस निकालूंगी. बिकॉज उसके एक डोम पहले ही कॉल्ड मी अ जोक. Right. How has Splitsvilla changed you? I think for me it has changed my life upside down. मतलब Yeah, सब कुछ of course. it has changed so dramatically. 2 महीने पहले तक तो मुझे पता भी नहीं था कि इन सब चीज़ों की वैल्यू क्या है. Having a good fandom and people that really support you, इन सब चीज़ों का मुझे मतलब नहीं पता था. अब मुझे पता चला है that sometimes when I'm feeling low, और जब भी कुछ ऐसा एपिसोड आने वाला होता है, that is very difficult for me. Suddenly I start trending on Twitter, which is a huge thing. And I can see group chats में जो भी सारे fan pages हैं, they make sure एक दूसरे में discuss करते हैं कि 7 बजे ना ये ready रखना है, ये edits ready रखना है, ये सब, and हम उनके लिए 2 घंटे का ये करेंगे. I don't know what it's called. दो घंटे ट्रेंड चलाएंगे. ट्रेंड चलाएंगे. तो वो चीज़ें देख के मैं सोच जाती हूँ कि भाई पूरे इंडिया में there's random people that really want me to be happy. Yeah. So that means the That's world. sweet. That's very sweet. Yeah. I get that. You? Now I'm not gonna take anyone's shit. तब फिर भी I was like कि ठीक है कोई बात है, I was protecting my peace, it's fine. छोड़ो बोलने दो, fuck it. Now it's like अब बोल के दिखाओ. Okay. अब बोल के दिखाओ. And if you could go back to day 1 of Splitsvilla, what advice would you give yourself? Don't play safe. And you, Akansha? What would I tell myself is that अकेले आए थे अकेले ही जाओगे. इससे One बढ़िया more गेम ही thing खेल I के चले think. जाओ. That is true actually. कि आप तो अकेली आई थी और आप तो अकेली ही जा रही हैं. The story आपके of वाला my life. अकेले आया था और दुकेले जा रहा है. Also, I think for both of Kashish us. needs to hesitate. Yeah, apparently I do. Apparently I do. That's what people on the internet say. But Yeah. if I start hesitating, who's gonna do this? And also, if I start hesitating, who's gonna do all the fame digging and gold digging? And by the way, guys, take lessons from me because I'm quite literally quite successful at both fame digging and gold digging. Let's go. Where's the mic? Where's the mic? Need to drop it again. Drop it again. No, but actually, एक तू कर, एक मैं करती हूँ. let's go. Clock it. But then again, it's like, you know, I've realized What? choosing a man is not worth it, you know. 'cause I mean, if the man doesn't would choose never- you, yeah, then exactly. If a definitely man it's does not not worth it. choose you, then it's not worth it. Now guys, ट्रिगर से थोड़ा ब्रेक लेते हैं. काफ़ी ups and downs हमने डिस्कस किया and I know, you know, it kind of takes a toll on your mental health. But well, इतनी हमने बातें कर ली, इतनी आप दोनों के बारे में बातें कर ली. शो के अब हम मेन रीज़न पे आएंगे, ठीक है? You know about me. Guys, I अब अपनी के तारीफ करूँ, but I'm like a fairy godmother. So, also, I need to tell you something very important. You believe in taxes? Because we do. Yeah. मैंने आपको Yeah. मैंने आपको काउच दिया, AC भी दिया ही, and I gave you a very good platform to share all the doubts, debunk all the rumors, everything I could do for you, I Yeah. did. Don't you think you owe me something too? What gossip do you want now? That's my girl. Now Sudhi is catching up. Vishu ये अपने दम पे टिक जाती. Now she's catching up. Girls have always one-upped their game on this couch. Always. You girls better not disappoint me. I have high AF expectations. Go on.
Okay, I'll start. Yeah. I have two gossips. Go on. One inside the villa, one outside. Go on. So, Yeah. someone Yeah. from Pyar Villa, a guy, wanted to make a connection with me. because Name usko- names. We don't do riddles here. हाँ. We don't do riddles here. जो अंदर भी क्लाउड चेजर था, बाहर भी क्लाउड चेजर, उसकी खुद की स्टैंड नहीं थी, भाईचारा में चलता है, भाईचारा से आई मीन आयुष आयुष का तो मैं गलती से भी नाम नहीं, इमेजिन ही इज सो नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं उसका गेस भी नहीं करती The only time he was seen in the show was because of Anisha. मुझे तो लग रहा है जहाँ तक. Yeah, I And think when he I've only called seen me it a once. joke. Yeah. That But what's the rumor? The gossip bomb. The gossip is that he wanted to make a connection with me starting में. And he's like, you know, तू एकदम ऐसी है वैसी, I love this. I'm like, you यार have तू a तो better जानता gossip. भी नहीं है. It's not adding up, okay? क्योंकि बंदा randomly मेरे पास आके इतना मुझसे क्यों प्यार जता रहा है. And honestly, I gave him this thing, okay? Not just because मुझे वो उसकी smile अच्छी लगी थी, और because उसको कोई और दे नहीं रहा था. I was like, दया, pity. No, but also because I was like, you sweet boy लग रहा है, कोई उसको देख क्यों नहीं रहा है, तो मैंने दे दिया. मेरे पास बचा था, मैं क्या करती, घर लेके जाती. So मैं उसको दे दिया था because of that. He told me बाद में, जब मैं convince हो ही नहीं रही थी कि Suzanne son, I have a plan. I'm like क्या? I want to make a connection with you because I think तेरा जो ex है वो potentially show में आ सकता Oh है. my goodness. And उसको उससे cloud खाना था. Oh my goodness. He's like कि मैं उससे fight करूँगा. And I'm like कि do you hate him? No, I mean मुझे उससे कुछ beef नहीं है, but I feel like कि you know मुझे काफी clout मिलेगा because मेरा जो controversy था. This cannot be real. This is real. Yeah. तो मैंने उसको reject कर दिया because I was like कि मुझे नहीं बना जैसा connection because what the fuck. Yeah. Whatever it is, like क्या बात कर रहा है तू? I don't need कि कोई उसको चाटे मारे मैं ex को, मैं ही काफी हूँ. चलो ठीक है. Okay. Yeah. That was your gossip bomb. One more. Okay. Go on. But name names. एक तो अच्छा दे तो फिर भाई. तो ये riddle है. फिर riddle का हम क्या करेंगे? Riddle हमारे पास बहुत है. It's a तो अच्छा bomb. दे. It's Okay. supposed to So detonate. I'm not hating against anyone. मैं Please do. Sadaf, Okay. my favorite contestant. Yeah. ठीक है. वो बंदी ने अब जो ये बीच में वायरल चल रहा था ना उसका कि she was caught or seen with a Polaroid picture or something with another Splits villain from last season. Yeah. Yeah. So यहाँ पे सबको लग रहा था कि are they dating? दिग्विजय. Yeah. यार नाम नहीं लेना था, अब नाम ले लिया आपने. ठीक है, ओके. तो वो बात थी. तो this was basically Sadaf's plan. दिग्विजय had no idea कि सदफ ऐसा करने वाली. पेड पीआर उसने पे किया मीडिया को ताकि वो लोग ऐसा रूमर बनाए कि शी इज डेटिंग, आई मीन शी इज विद और समथिंग विद दिग्विजय, क्योंकि फोटो था. उसने क्लियरली बोला नहीं शी इज डेटिंग, बट उसने ऐसा दिखाया कि कुछ तो है. कि बज़ उठे कि oh my god am I And you know, dating मुझे that कैसे पता guy. चला, मुझे एक ट्रस्टेड मीडिया सोर्स से पता चला मुझे सामने ये से. तो मुझे भी आज पता चल रहा है. मेरे पास इतने सारे गॉसिप है, मैं घुसती नहीं हूँ सब चीज़ों में. You know what there is? That's my job. That is my job. Because what the hell? Yeah, and the thing is that she wasn't satisfied with the enough talking. उसको जो लोग bullies बुला रहे थे ना, she was not satisfied. So to improve her image or something, she wanted to show Makes that sense. she is with a guy who's actually nice. That actually And दिग्विजय अच्छा बंदा है, You know. sweet and all है. You know. अब इससे better gossip मिली आपको कभी? You know, honestly, Susie, I am proud. I am proud. And also, I want to believe you. Like, for some reason, I think you are not lying. I'm not lying. You know, it's not like I'm pointing fingers at anybody. But, you know, it's just one of those things कि तुम्हारे मन में एक thought आता है and then you're like, no, but I'm not that bad girl who'll have this thought. And then another girl says it with proof and you're like, okay, so maybe I was right about it. Yeah, exactly. So, अब गाली मुझे नहीं पड़ेगी, उसको पड़ेगी. but dude, like, seriously, to plan this कि मैं अपने एक friend के साथ दिखूंगी just because he is famous from last season कि वो मेरा उसके साथ link up होगा and I'll get that Image clout. भी improve I करने mean के इस लिए. बार तो people are doing paid PR. This And is very दिग्विजय obvious. has no idea. He had no idea कि वो ऐसा कर रही है, by the way. I should ask you, Digvijay, if you know about it. Yeah. Okay. मुझे भी बताना please. अभी phone करती हूँ उसके बाद. I'll ask. I'll let you know. Now, Akansha. यार इसे 4-5 दे दिए, मेरा भी ले लो और इसमें. सुनो, मैं सब disregard कर रही हूँ. जो उसने last वाला दिया ना, that was so sexy. It was so sexy. उसके I think ऊपर I नहीं जा love सकता it. मेरा. जा सकता है. नहीं. You have to do it, girl. You have to do it. There's this controversy going on कि में अनुष्का और उनके फादर, when Anushka couldn't win, when she was not in the top 20, तो मैं भी टॉप 20 में नहीं आई थी, तो मैं भी बैक स्टेज थी, वो भी बैक स्टेज थी, और मेरे साथ जो मेरी बाकी दोस्त थी, दे आर ऑल्सो विलिंग टू बैक अप माई स्टेटमेंट बाय द वे. और पूरा ऑर्गेनाइजेशन लिटरली वॉन्ट्स टू गो लाइव एंड टॉक अबाउट द होल सिचुएशन, क्योंकि अनुष्का डिड गेट
एन ईमेल सेइंग कि उसको सू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से क्योंकि वो फालतू का डिफेम कर रही है और झूठे नरेटिव सेट कर रही है ऑनलाइन आके लाइव पे आके। एंड ऑल्सो जब शी कुडंट विन तो उनके फादर जो थे उन्होंने पीछे आके काफ़ी सीन भी बनाया था। एंड दिस आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट देयर मतलब अनुष्का के फैमिली या उसके मम्मी पापा, दिस इज व्हाट आई जस्ट सॉ विथ माई ओन आइज। आई वॉज लिटरली हम सब यहाँ रो के निकले कि हमारा नहीं हुआ, हम नहीं जीते, हम सब रो रहे हैं। एंड देन आई सी कि कहाँ है डायरेक्टर का जो नाम था कि कहाँ है, मुझे उसको उनको मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी नहीं जिताई है। या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड द एंटायर मतलब जो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे everyone can vouch for this. Classy. सेकंड सो क्या तू वॉन कर Classy, रही है? very classy, very graceful, Yeah, must and say. मतलब very apparently- dignified too. Yeah, and imagine you're coming on live with your father and मतलब तुम इस बारे में झूठ बोल रहे हो। वो मैंने कभी नहीं बोला। दैट इज दीक्षा के मुंह से वो बात निकली क्योंकि वो ये चीजें कहती थी वहाँ पे और बाकी सब भी कहते थे, बट मेरे मुंह से ये चीजें नहीं निकली और ना ये कभी निकल सकती है। और जो भी ऑफ कैमरा बातें हुई हैं उसके बारे में तो मैं यही बोल सकती हूँ कि मेरे मुंह से कभी नहीं निकला है भाई ये सब। और हमेशा दीक्षा ही क्यों बोलती है ये मैंने चीज़ें। भी कभी जाकर उसको बोला नहीं सब दिल्ली वैली में मिलकर। शी इज टेलिंग पीपल कि सुजान ने दिल्ली में बोला मुझे ऑल ऑफ दिस, तो तब तूने क्यों नहीं बात उठाई? अब क्यों उठा जब दीक्षा बोल रही है? When she couldn't win, अनुष्का couldn't win, तो उसने पूरा पीछे Yeah. सीन हुआ है। और फिर हमारा ऐसा था कि जो फिनाले में इफ़ यू डोंट विन फिर भी जो विनर का क्राउनिंग होता है तो सारे कंटेस्टेंट्स को आना पड़ता है उधर लाइन में टू लाइक यू नो जब सेलिब्रेट करने। तो वो नहीं आई थी और भी बहुत कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो पहले ही चले गए थे, बट शी मेड श्योर कि मैं मतलब उसने बोला था कि मैं यहाँ पे नहीं खड़ी रहूँगी, मैं पहले ही चल जाऊँगी, आई डोंट केयर अबाउट द विनर एंड दिस एंड दैट। एंड वो और उसके मम्मी पापा या उसके पापा जो भी थे मतलब मुझे याद नहीं कितने जन थे, पर उसके पापा को मैंने स्पेसिफिकली देखा था। एंड आई एम नॉट गोइंग मतलब कि मैं उनके पापा के बारे में कुछ नहीं बोल रही, दिस इज सिंपली जस्ट व्हाट आई सॉ, दिस इज फैक्ट। एंड मैंने ये कभी ऑनलाइन नहीं बोला बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन। ये मैंने अपनी दोस्त को बोला था और एक और दोस्त को बोला था जिसको मैं दोस्त समझती थी, उसने आपको बोला एंड यू लिटरली डिफेम्ड योरसेल्फ कमिंग ऑन लाइव एंड खुद ही ये चीज स्टार्ट कर रहे हो। मतलब I never told her. Perfect. Yeah. But guys, I think there's another gossip bomb, Akansha, that you have and that you're missing. Something about your best friend's boyfriend? Huh? Diksha and Ayush, that best friend. So there is a gossip bomb with Diksha and Ayush. We need to know that first. Go on, tell कौन us. सी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड फिर भाई? अब आप बता दो, अब आपने बोल दिया तो। या मेरी दोस्त ने मुझे बाहर आके बताया कि यार इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये कैसे शो में चली गई, इसके बॉयफ्रेंड को तो मैं फॉलो करती हूँ। So did they break up before coming on the show or not? आई एम नॉट श्योर बट नाउ Okay. looking at the Well, post I'm like thank you for the gossip, but this is not what I wanted to know. I wanted to actually know about Himanshu. best friend and his Boyfriend? Diksha's boyfriend Himanshu? oh मैं real life चली गई shit. Wait a second. Real life चली गई? I thought they were dating in real life too. I mean, see, I met Himanshu at this one party, and he did express a lot of things that happened between him and Diksha. And I think the main point was कि जब Himanshu needed Diksha the most, जब उसको hate मिल रहा था हर जगह से, तो तब कब? Diksha ने किस एपिसोड पे? हर Precisely. शुरू से जितना भी उसको हेट मिल रहा है तो दीक्षा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसको जो हेट मिल रहा है वो हिमांशु की तरफ से आ रहा है। Yeah. क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को हेट मिल रहा है। तो उसने जब उसको वो बहुत लो था, जब उसके और दोस्त जैसे योगेश वगैरह उसके साथ नहीं थे एंड ही फेल्ट वेरी अलोन, तब दीक्षा ने भी कल्टी मार ली एंड ही वाज लेफ्ट कम्प्लीटली अलोन। तो वो अपना ऐसा एक्सप्रेस कर रहा था मुझे पार्टी में, और उस पार्टी से हमारा सब कुछ सॉर्ट हो गया। मतलब हमारी जितनी भी दुश्मनी वगैरह थी ऑन द शो, हिमांशु और मेरी कट्टर दुश्मनी है लिटरली इन द शो। मतलब उससे ज़्यादा बुरा मुझे कोई नहीं लगता, बट आउटसाइड द शो आई थिंक ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। शो में उसने अपना बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर दिखाया है। पागल ही हो गया था शो में, मैं तो यही बोलती हूँ, कुछ भी करने लग गया था। बट इन रियल लाइफ वो इतना ना बोलता है, हाँ, वो बहुत शांत शांत रहता है। है, Yeah, he's very nice in real जेंटलमैन life. कंप्लीट, मतलब बहुत नॉर्मल बंदा लगता है। बट ये जो चीज़ हुई, आई थिंक दीक्षा वाज रॉन्ग इन ऑल। But wasn't, I think, Himanshu, let's say, was looking for a certain type of girl? Oh, okay. Oh my Yeah, god. Oh my god. Suzy, go okay. on. Yeah. तू बताएगी ये? So हमें अंजलि ने बताया था आकर रूम में कि apparently हिमांशु before he pitched Diksha, he pitched अंजलि. Okay. I don't know कितना सच है, बट मुझे पता ही सच है क्योंकि कहीं ना कहीं हिमांशु ने मुझे भी बात बोली थी। That he pitched her and he's like कि I can take you till the end of the show, guarantee, एक शर्त पे। What's the शर्त? You are not allowed to have opinions. You are not allowed to fight anyone. You are not allowed to disrespect me. You are not allowed to talk when I'm talking.
तुम खाली मेरी यहाँ पे पपेट बन के चलो। Oh my God! What the hell is that? Is it true? See, this is what I have also heard. अंजलि ने हमारे बोला पास आके था। बताया था उसने कब? कि Oh my he was God. looking for someone जो ज़्यादा बोलती ना हो, जिसके साथ पर जो ज़्यादा इसके ओपिनियंस ना हो और जो उसके मतलब अगेंस्ट में कभी ना जाए, मतलब वो ज़्यादा ओपिनियन हाँ जी करे। हाँ, जी, प्रधानमंत्री क्या चाहिए आपको? इसलिए तो मैंने दीक्षा And को फिर बोला इसके पास जाके था। same चीज़ बोला हाँ, था। इसलिए मैंने दीक्षा को बोला था that listen दीक्षा, I don't need a man to be seen on the show. Okay. Whatever it is, मैं अगर Okay. भले ही परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, चाय फेंक रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, but at least I don't need a man to be seen on the show. Yeah. Yeah. Okay, I must say this. I must say this. For the longest time after Niharika's gossip bomb, I was just disappointed. You know, मेरी वो प्यास नहीं बुझती थी. मेरी वो thirst was never quenched. And I was like, मजा नहीं आ रहा. But girls, फट तो रही है, not gonna lie. but girls, असली चाय तो यहाँ फेंकी है. That has been spilled. Girls, you've killed it. जितने भी gossip bombs दिए इन्होंने पर banging. We've got हमको promo cut मिल गया, हमको reels का cut मिल गया है, Reddit threads का क्या चलेगा वो भी मिल चुका है. We've got everything. This episode covers it all. On that note, guys, because you all have given us such amazing gossip bombs, my heart is full. I need to give you something too. So we have this beautiful Emily in Paris collection from Falbonas that is literally going to transport you to Paris right away. Ready, girls? Okay. Ready. Pretty jewelry for pretty ladies. Here you go. Let's go. Okay. Mm-hmm. Here. Oh, thank It you is so chic, much. it is playful, Is it a ticket and it is designed Paris? to make you shine. देखो ticket to finale तो मिली नहीं, ticket to Ticket Paris to Paris, मिली बहुत। Yeah. I'll do a solo trip. Open it, girls. Show me. I'm so excited. What do we open first? Whatever. The letter. Okay. It's not a letter. It's What just is a it? pimple patch. Pimple patch. मैं तो अभी मुझे लगा पेरिस की टिकट दे दिए। क्या इन लड़कियों का इतना दिल टूट गया? We were worried, you know, कि आपका ऐसा breakout ना हो जाए skin, तो we gave you pimple patches. How do you open this? इसके बाद तो ब्रेकआउट उनका होगा जिनके बारे में मैंने बॉम्ब फोड़ा है. आज लाइव आएंगे लोग. स्ट्रेस The तो असली internet's उनको gonna go होगा. wild after this. देखो मैं ना देखो I don't intentionally start controversies. मेरे मुंह से निकल जाती चीज़ें जो सच होती है. Yeah, if it's the truth, it's not your fault. करो मत ना वैसा काम कि सुनने में शर्म आए. I love Oh, it. shit. Show me. Oh, this is so beautiful. This is like a 2-in-1, gold and silver. Oh my god. I got Both of you have both. such beautiful rings. Remember we used to do this on the throne. Yeah. Now you have all the more reason to. Yeah. This is so cute. Oh my god. I love it. Oh my god. बहुत It was सुंदर so cute. If he won't, Parmanas will. And for all the guys who've loved this collection just as much as we have done, go online, shop at palmonas.com. Yay. Ooh. Now guys, it's time for another wonderful segment. Okay. It is called Hammer the Rumor. दीक्षा पे मार सकती हूँ मैं? जिस पे मारना है मारो. Basically, हमने बहुत सारे rumors सुने. You know, rumor mills का काम क्या ही होता है? आलतू फालतू बातें फैलाते रहना. Who would know it better than girls? तो अभी आपको मैं मौका दे रही हूँ कि आप उन rumors को debunk करो. You have to do yes, I agree and explain, or no, I disagree and explain in a line or two max. Okay. Sandy knew that Diptanshu has a girlfriend outside and is playing the victim throughout. She does? Yes. 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 She knew कि She उसके कपड़े knew कहाँ से आते it. हैं. वो उसी ने मुझे बताया था mid season. Ah! Can I say one more तानसू की thing? बंदी उसके कपड़े भेजती है this and that. वो खुद मेरे को आके बताती थी रात को 3 बजे हमारी Getting heat conversation flashes. इतनी गर्मी Yeah. हो गई है South में अभी. Oh Remember goodness. the challenge, spun challenge, मेरा जो spun challenge Yeah, था, yeah. जहाँ पे सैंडी उदास हो गई थी कि no, I am seeing everyone's true connection. मुझे sad feel हो, so Yeah. sad इसलिए feel हो रहा था, उसका connection fake है. Yeah. She was like कि she knew about it. Yeah. कि he's not serious about her. Yeah. And हमारा एक segment था, we had to perform digital. उसमें I wasn't giving my all. I was just taking it हल्के में. And she like सुजान तू अच्छे से क्यों नहीं कर रही है?
Why are you taking it so ऐसा lightly? मैं इस segment को इतना ही seriously ले रही हूँ जितना दीप्तांशु तेरे connection को ले रहा है तेरे साथ. And then she got triggered. बहुत ज़्यादा. So Sandy is lying to us because she said she had no idea. No, Yeah, knew she is about it. completely lying, completely and But don't you utterly. think, Akansha, that they can say the same thing for you, that Akansha is completely lying and she knew? बट मेरे बारे में और लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो तो 3 लड़कियां बोलेंगी. इसके बारे में पूरा विला बोलेगा क्योंकि सबको पता था. एंड दीप्तांशु ने मुझे खुद ने बताया था कि मतलब he was very clear. Because like even on the show, I think even Khushi for that matter, Yeah. she had a lot to say about Diptanshu, and she said that she had no clue that Diptanshu had a girlfriend. Diptanshu was rather handsy and close and hanky panky with her. But See, this outside, तो I can't yeah, agree we क्योंकि ना don't जब वो know. हमारे विला में था, दीप्तांशु was the sweetest and one of the most respectful guys. And I think अगर सिर्फ वो सौंदर्य नहीं होती ना अगर उसके बाजू में, तो हमें ना बहुत अच्छे मतलब हाँ, but what about what Khushi said? Khushi said that she didn't know We about the don't know girlfriend. about that He was part. really handsy with her. बाहर आकर के Diptanshu's girlfriend contacted her and like she was being all ballistic. But Diptanshu never said a word, and Khushi Yeah, just Diptanshu's like Sandy. girlfriend contacted her outside the show. Yes, texted on Instagram and started scolding her left, अच्छा, right, and Khushi को, center. okay. Yeah. So just like Sandy, Khushi is saying the same thing that we didn't know. You I didn't mean know हो about it. सकता है, but this is what Diptanshu and Saundarya Okay. both told me. Yeah. And I think सब पूरे विला को पता था ये तो. Okay, now we have another gossip bomb, guys. I love you guys. Keep it coming. Now, the last question from Hammer the Rumor. Saurav and Niharika are only a real couple right now because the clout is that way. No, No. that's not true. So I'll tell you something. कि जब वो विला मर्ज होके जब सौरभ वापस आया था तो योगेश, मैं और सौरभ और रूम में एक और कोई बंदा था, आई थिंक आयुष या कोई तो था. तो तब है ना सौरभ अचानक से रूम में आके बोलता, तब योगेश उसके साथ पेड अप था निहारिका के साथ, बिकॉज आई वाज विद गौरेश तो टास्क के लिए. तो तब है ना उसने आके बोला था सौरभ ने योगेश को कि भाई मुझे एकदम ऐसे कि भाई मुझे निहारिका बहुत पसंद है यार, वो तो बहुत क्यूट है यार, ये बोल रहा था वो. हाँ, तो बहुत ऐसे क्यूट सी बन के बोल रहा था. और आई थिंक पूरे एंड तक ना दे वर द ओनली कपल दैट फेल्ट रियल. Yeah. एंड इवन आउटसाइड द शो दे, आई डोंट थिंक टैग्स दिए उन्होंने एक दूसरे को अभी तक, बट दे आर सीइंग ईच अदर. क्योंकि मैं उसके घर पे भी रहती हूँ बहुत टाइम, तो मुझे I don't understand this fascination and obsession with not giving tags. This is just, I don't get it. But sure. अपेरेंटली 20 Now, दिन में प्यार भी guys. तो नहीं होता है. Sorry? I didn't hear. Sorry, please repeat. अपेरेंटली 20 दिन में प्यार भी तो नहीं होता है. No, तो tags तो 100% बड़ी नहीं दूर होता. की बात है. 100%. Yeah. Now, guys. लेकिन 20 दिन में प्यार से ब्रेकअप मूव ऑन जरूर हो जाता है. Apparently वो 10 भी दिन नहीं में. होता है. Apparently वो भी नहीं होता है. 10 दिन में तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन जरूर हो सकता है, एंड नए शो में भी आ सकता और एक दिन में 20 दिन वाले रिलेशन से भी मूव ऑन हो जाता है. So the maths is mathing if you think about it. है. कैलकुलेशन बैठ रही है थोड़ी सी. Now guys, मैंने आप लोगों को बहुत जज किया, हम सब ने. मैंने तो कुछ भी नहीं, खैर मैं तो सच्चाई की मूरत हूँ, मेरे से ज़्यादा तो शरीफ इंसान नहीं है. मैंने तो बिल्कुल जज नहीं किया, बट इस सेगमेंट ने, हमारे शो ने आपको बहुत जज किया. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जज होने में मज़ा नहीं आता, लेकिन जज करने में मजा हमेशा मज़ा आता है. आई वुड नो मैं यहाँ बैठ के और क्या करती हूँ. I'm like, We listen, we judge. yeah, that's what we do on the show, guys. Yeah. So now, अब मैं आपको मौका दे रही हूँ to become both judge and jury. Okay. बेसिकली एक हम अवार्ड सेगमेंट करने वाले हैं क्योंकि वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड, तो हमने सोचा कि ये भी और स्पाइस करते हैं हमारे शो को. दिस इज बाय द वे कॉल्ड, फॉर द सेकंड टाइम इंट्रोड्यूसिंग BYOG अवार्ड्स. Exactly the reaction I was hoping for. आकाश कर दो अब. And by the way, fans, don't you worry. मैं सिर्फ इनकी सुनना थोड़ी बैठी हूँ. If you don't agree with what they say, that's exactly what we want. जाओ इंटरनेट पे यार, हल्ला मचाओ. Let us know that no, these girls are liars, and we will agree. Just kidding. Just पे बोल kidding. देते ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ पर दर्द होने लग जाता है. यहाँ तो बहुत Now guys, शुक्र मनाओ मैं सामने सामने बोल रही हूँ, वरना मैं इंस्टा लाइव और स्टोरी पे जाके बोलूँ आकांक्षा मैं तुमसे बात कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. आई थिंक कुछ लोगों का वाईफाई लेना चाहिए एट दिस पॉइंट. उनके क्यों है कनेक्शन इंटरनेट. I agree. Yeah. Now guys, मैं आपको कुछ अवार्ड्स कैटेगरी बताऊंगी. Yes. आपको तुरंत ही बोलना है आई गिव दिस अवार्ड टू XYZ बिकॉज वन लाइन आंसर, दैट्स इट. ठीक है. क्विक एंड यू हैव टू डू इट टुगेदर. ओके. Okay. रेडी गाइस? यस. नंबर 1, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम. थिंग्स की पूरा शो तो मेरे ही अराउंड रिवॉल्व करता है, बट करता नहीं है. 3, 2, 1 हिमांशु.
ये आई थिंक जनरल आंसर है ऑफ एवरीबॉडी काउच। अब कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, मैं बता रही हूँ। We would like to give this award टू हिमांशु बिकॉज वो उससे लगता है कि वो यहाँ का राजा है स्प्लिट्सविला का, और आप but उनकी प्रजा। मैं तो नहीं हूँ। पर वो ढोलकपुर का निकला। वो तो सिर्फ ढोलकपुर का राजा है, उसकी वो दिन भर लड्डू खाता रहे। अवार्ड सेलेक्टिव अमनीशिया अवार्ड, बेसिकली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हाँ मैंने कब किया, मैंने कब बोला, मुझे तो याद ही नहीं। We would like to give this award to Diksha. Diksha Yeah. because दोनों she's couple की proved बात होना herself. चाहिए equal। शो में तो बहुत अनफेयर हुआ दीक्षा के साथ, so this time I want to भले उसका पार्टनर ना दे, ये लड़कियां उसको देगी। Okay। देखो inside and outside the show she has proved herself कि वो ये award deserve करती है। Damn girl. Yeah girl. ये फिंगर कुछ और दिखा रही है, इसका इंटेंशन कुछ और है। लाइक इसके दिल से यही आंखों में मारो। आंखों में ऐसे सीधा आंखों में मारो। क्या दिक्कत है तुम्हें मैच में? No, Next one, he's a good guys. guy, guys. Outside the show only. गैसलाइट गुरु कैन Gaslight बेसिकली guru. कोई भी सिचुएशन में समहाउ उसको ऐसा टर्न करना है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, जबकि कल्प्रिट वही है। Outside the show it's Sandy and Sadaf I think. Okay. Inside the show चक्ष भी था और outside the show भी चक्ष भी था। चक्ष है कुछ भी नो। बहुत सारी लिस्ट है। चक्ष की बंदी है करके कुछ। चक्ष सदफ एंड सैंडी। ओके Yes, तुम्हारा जो ये ग्रुप था टेबल वाला। टेबल तक ही रह गया। Yes, so we Next. were going to give it to them. Yeah. वॉकिंग रेड फ्लैग, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। आकांक्षा और रिलेशनशिप और ट्रस्ट और हाय यार इतना सोचना लग रहा है तुझे? नहीं जल्दी बोल, जल्दी बोल। और नाम भी बोलने मुझे। टिक 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 टिक। वॉकिंग रेड फ्लैग इज मिस्टर योगेश रावत। ओके व्हाई? मुझे यहाँ पर दर्द हुआ जब तूने बोला, पता नहीं क्योंकि आई थिंक 20 दिन में जो इंसान 20-25 दिन आई थिंक इट वाज इन 20 दिन 26-27 दिन तक था हमारा जो था, तो इतने दिनों के बाद दिन रात साथ रहने के बाद भी अगर तुम्हें लिटरली 2 घंटे भी नहीं लग रहे अपनी एक्स के पास वापस जाने में और उसको अपनी जैकेट देने में, देन यू आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग एवर एंड आई डिड नॉट इवन गेट एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। एंड यू सुजी? सेम योगेश? ओके योगेश। नेक्स्ट डेलुलू का लुलू, बेसिकली बहुत ज्यादा डिल्यूजनल है बट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि मैं ही सही हूँ। Oh yeah. Anushka, we're gonna give it to you. The only award you're getting, bro. इस बार क्राउन तो नहीं पर अवार्ड जरूर मिलेगा। देंगे This हम। time you won't be angry. मुझे ना bro हंसी आ जाती है। पता स्टार्टिंग में I'm gonna be very honest, when she came ना wild card, I was loving it. Wow, what confidence. VD में queen तो मैं हूँ, bro तो नहीं है। तो नहीं है। Please. K for queen. Don't do that, please. ये self मतलब खुद से कौन बोलता है यार? Yeah, This is so छोड़ो मैं तो क्या ही depressing. बोलूँ। Being confident is good. Agreed. Yes. Next. Yeah. Star bencher always has a backup plan. I mean, in your case, it should be an obvious answer, but yeah, always has a backup plan. तांशु I think. क्योंकि वो coin वाला जो challenge हुआ था उसके बाद Okay. split coin. Yeah, I think Diptanshu. Here you go, bro. Next. विला का टूरिस्ट आया शो में, कुछ नहीं किया, खाया पिया चल दिया। ये कॉमन आंसर होता जा रहा है इसका। I think Harshit is a very good guy. उसको ड्रामा में Yeah. पसंद नहीं वगैरह। उसका एक सीन कट कर दिया था यार शो में Oh, starting please बता दो वो वाला। फर्स्ट डे मैं एक्टिंग करती हूँ। सो फर्स्ट डे जब प्यार विला वाले लोग मिले एक दूसरे से, हम विला पहुंचे, पहली बार हमने पूल वूल देखा, तभी भी ऑल एक्साइटेड, पूरा एक्साइटमेंट थी। पहले हम कैसा था अलग अलग थे, वी नॉट अलाउड टू टॉक एट ऑल। फिर उसके बाद विला के अंदर एंटर किया, कैमरास एवरीवेयर, वी वर एक्सप्रेसिंग आवर ट्रू इमोशंस ऑल ऑफ अस एंड ही उसके लिए ओवरवेलमिंग था बहुत ज़्यादा। ठीक है मेरे लिए भी हो जाता, उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सडनली ही कम्स लाइक एक सेकेंड, तुम फेंको, तू फेंके, ये क्या हो रहा है? और उसको देख के आज सारे पैनिकिंग के, हमने कि भाई तू ठीक है? वो वाला पता डोम वाला जिसमें वो खुद ही नाम लिख देता है। हाँ, तो डोम में हम सब अनसेफ साइड पे बैठे थे एंड वी हैड टू वोट फॉर द आइडल मैच जो सेफ साइड पे है, एंड जो सेफ साइड वाले लोग हैं उनको 2 नाम लिखने थे फॉर एलिमिनेशन। ओके एंड हर्षित मास्टरमाइंड अच्छा बंदा यार वो। क्या किया बस उसने? साबुन थोड़ा स्लो है। हाँ, उसने लिख दिया मेरा सौरभ का नाम। उसको लगा कि वो डंप कर सकता है, ही हैज द पावर टू डंप। उसको लगा वो सेफ साइड पे पर वो भी अनसेफ साइड में था और और उसने उसने नाम लिख दिया। और सब नाम लिखा रहा, बोलते सुजान सौरभ। तो मैं देख रही हूँ हम तो यहाँ खड़े हैं ये क्या हो रहा है?
And he's like, हम भी यहाँ. Good morning, Harshit. I would like to eliminate them. I'm like, oh. उसका उस दिन अलार्म क्लॉक लेट बजा था. Like, good morning, Harshit. And the last one, the Golden Chamcha Award for the biggest hero का दोस्त. Ayush, यार. I think Ayush. ओ यार. गॉमजी नहीं है. गॉमजी का खुद का वो था. शुरू में गॉमजी लगता लग रहा था बाद देखने में में, नहीं but आयुष, इसलिए तो उसको निकाला शो से मैंने. एंड तक तो आयुष था. मतलब So उसका खुद आयुष- इंडिविजुअलिटी नहीं था एंड ही वाज ऑलवेज लाइक क्या बोलते हैं उसको साइड केक लगता था. मैं हिमांशु की यहाँ पर बैंड बजा रही हूँ. गुस्सा आयुष को आ रहा था. मुझे बोलता मत कर क्यों ना करो. और हर चीज में ये बोलता था कि कोई नहीं हिमांशु मुझे बचा लेगा. Oh my God! शर्म नहीं आती है ऐसे बोलने में कि दूसरा लड़का मुझे बचा लेगा. इमेजिन मतलब खुद तुम शो में आए हो यार शर्म करो यार. And also one more thing, जब वो मुझे पिच कर रहा था ना, मैंने विशु वन प्रीत, तो you know what he pitched to me? सूजी अगर तू ना परफॉर्म करेगा साथ में तो हिमांशु तो मुझे बचाएगा. Oh my प्रायोरिटी. हिमांशु साथ साथ तुझे भी my God. हिमांशु अरे एंड तक तो हिमांशु खुद अनसेफ में पड़ा है भाई. उसको खेलने को भी नहीं मिला. कौन बचाएगा? उसको कौन बचाएगा? Exactly. No, because that's the thing. And I told him that, bro, listen, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर तेरे साथ परफॉर्म करूँगी तो हिमांशु जो बंदूक रखा है मेरे सर पे वो हटा देगा. Okay, guys. That was wonderful. With that, we've come towards the end of this segment as well. We are done with our very own BYOG Awards. And mind you, girls, the entire episode was banging. Y'all were on fire. Your gossip bombs were absolutely ferocious, fierce, and so damn entertaining and jaw-dropping. Thank God. Yes. Thank you so much. Thank you so That's much so for being on the show, fun. and I really do hope कि you enjoyed your time and you had a We good time loved on it. my couch as Yes. मुझे पता नहीं था मेरा मुंह इतना खुल सकता है. बट अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कुछ कि मैंने क्या बोल दिया. मैं तो भूल भी गई हूँ. मैं- टू बी ऑनेस्ट. well. एक बहुत सेक्सी लाइन आई है मारू. हाँ. अक्सर मेरे साथ जो लोग होते हैं मैं उनका मुंह खुलवा ही लेती हूँ. Ting 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 ting. Take it however you'd like it. Yeah, that's also something we say to each other. Yes. Thank you so much for coming to my show, guys. Yeah. Thank you so Thank much you for so having much. me. Thank you. But I have to tell you this कि Yes. आने से पहले ना I was scared to meet you. I was like कशिश है बैंड बजा देगी आज तो. But you're actually a sweetheart. You're just like ऐसे बकचोदी तो करनी है भाई. हाँ life यार, में. मतलब मुझे You're तो just like लगा that. कि you know we're just chilling, we're just talking Yeah. normal वाला. मुझे ऐसा नहीं लगा कि you're taking our podcast into टॉक शो में आने से पहले मुझे Talk लग रहा था show. कि यार हर एक वर्ड ना वो ऐसे करना पड़ेगा और लोग क्या सोचेंगे. बट विद यू इट फील्स सो फ्री. अब बाहर आके बोलो पता ना चलेगा बाहर हमें. में देखेंगे क्या. कि it doesn't matter. Yeah. Who cares? Yeah. I'm just glad that y'all could open up and y'all had a great time on my show. We did. I'm gonna take this validation and sleep tight tonight. Yay! Thank you so much, guys. Bye bye. Bye bye. Thank you guys. Now, guys, is the time for the only segment again, जहाँ मैं spotlight खुद से हटने देती हूँ. It's time for the BYOG Spotlight. And इस हफ्ते का BYOG Spotlight जाता है on the creator of Splitsvilla. Sorry, the 180p Splitsvilla. We have unpopular Swarna, and the second spotlight goes to, drum rolls please, my darling friend Nisman. Your videos have not failed to make us laugh yet again. And on that note, guys, keep showing us your creativity. बनाते रहो ऐसी sexy reels, and I'll give you a shout out on the next BYOG Spotlight. That was a lot. I know कुछ लोगों को शायद ये एपिसोड पसंद नहीं आएगा, but that's fine. मैं उनके लिए ये एपिसोड बना भी नहीं रही. I'm making it exclusively for you guys, my favorite gossip mongers. And you know what? I think there's a lesson for all of us in this. Next time किसी के लिए butterflies हो, किसी के लिए feelings हो, ask yourself, do a double check. Am I a connection or just a convenience? Anyways, चलो अब मैं चलती हूँ और trigger नहीं करूँगी. This is me, Kashish Kapoor, signing off from MTV BYOG Season 2. Always keeping it cute and controversial. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं. तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए. चले? Oh no. I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up.
Split Pugloos. If I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.